Welcome participants and members in the today's webinar that is conducted by the North Axis Study Circle of NIRC of ICI. So today there is a very new topic, that is importance of forensic audit techniques in today's world. So I welcome you all in today's seminar, and I together with Arun Kumar Gupta, Rajesh Arora ji, welcome you all. In today's seminar, the speaker is CA Mukul Agarwal, and he is very eminent and a very prolific speaker, that is a fellow member of ICI and MBA Finance for Symbiosis Pune. He has also done the certification course on forensic and detection from the ICI. He is also member of Association of Certified Fraud Examiners and also Certified Forensic Investigation Professional from US. He is having 13 years of experience. Out of 5 years of experience is with EY, a Big Four accounting firm. He is managing partner of J. Mandal and Company, and that faculty in certificates course on forensic accounting and fraud prevention of ICI. And he is also a faculty on IFRS with CAG and ICI, and also the Delhi University. So I welcome you, sir, CA Mukul Agarwal ji, for today's seminars, and I request you to start your deliberations. Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you, sir. From where I can share the screen? आपके साथ नीचे होगा शेयर स्क्रीन ऑप्शन होगा एक. हाँ, एक सेकंड आ गया. हाँ. कुछ आवाज आ रही है कहीं से, थोड़ा सा अगर म्यूट करेंगे तो कोई जहाँ से भी आ रही है. Good evening, everybody. And I would like to thank Ramanji, Arunji, and Rajeshji for giving me this opportunity. So before starting now, everybody is very much interested to know whether this date would be extended of the income tax from the income tax department. So Arunji, I'm also one of them to know about it. Because that is bread and butter for us, other than forensic. And now forensic audit. See, today, which we all would agree that the kind of liability we are having while signing even a single balance sheet, we are having a huge liability on us. And any investigative agency can call us and ask us about our working papers and everything. And see, maybe I have a biased opinion that income tax practice per se, with the faceless assessments all across appeals and all across the normal assessments, the practice is saturating. Maybe Ramanji can add on it. I'm not a tax practitioner, so I cannot say on that. So, सर मैं अपना थोड़ा सा बताऊं तो फीस कम होती जा रही है. So that's why we can say the saturation point has come. Yeah, that's why we can say the saturation point has come. okay. See, so, and wherever the human being would be there, till the time human being would be there on this earth, fraud would be there. And if fraud would be there, forensic audit would be there. So it is as simple as that. The opportunity for forensic audit is very big. Then comes why chartered accountants. See, we are the best guys to unearth the financial frauds. So because we know how the entries are moving around in the company, and even MBAs, this field specifically, MBAs also cannot overpower us.
because they need a thorough expertise on the accounting for this forensic audit, which they don't have. And CAs definitely have a very good edge on the forensic audit, and that is the future. I would just put in a single word of caution as well, that as a chartered accountant, what I feel in my last 17 years of my experience, professional experience, that we guys, while signing the audit report or while preparing the audit report, we are more into copy and paste. Be very clear, be very specific, because the liability would be very huge. If there is a fraud anywhere and you are a forensic auditor, you will be the first person to be called by any investigative agency or any person all across the board. So if you are doing a forensic audit, please do it very carefully, and at the same time be very, very clear what you are writing with. If you don't get any documents, give the limitations. मुकुल जी Give the एक limitation then मिनट, and there. मुकुल जी Yeah. सर आपकी आवाज ना साफ नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम आपकी इंटरनेट आपका देखना ठीक है सर, क्या मेरे यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम? नहीं सर, मुकुल सर के यहाँ से इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू लग रहा है मुझे, थोड़ा सा डाउन स्पीड आ रही है। अच्छा मुकुल सर, आप ना अपनी वो जो अपनी ये वीडियो है इसको आप डाउन करके भी बोल सकते हैं, जिससे कि आपकी इंटरनेट थोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर जैसे इंटरनेट ठीक होता है फिर आप वीडियो कर लेना। एक सेकंड में कर देता हूँ। हाँ जी हाँ जी। So am I audible now? Is it better? हेलो, मुझे सही लग रही है सर आपकी आवाज अभी फिलहाल। अब ठीक आ रही है लग रही है? जी जी अब ठीक आ रही सर। थोड़ा स्पीकर अगर पास रख के बोलेंगे तो और क्लियर आ जाएगी सर। सर लैपटॉप ही है। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? नहीं सर, आवाज आ रही है, थोड़ा क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी सी उसमें मतलब बेस मतलब थोड़ा सा है। सर इनके बोले ईयरफोन लगा लें, उससे ज्यादा बेटर आएगी सर। मैं वही कर लेता हूँ सर, एक सेकंड। या सर प्लीज प्लीज। अब आवाज आ रही है? हाँ बहुत क्लियर आ रही है सर, अब सही आ गई आवाज। अब ठीक है? जी जी बिल्कुल सर, अब सही आ रही है बिल्कुल। परफेक्ट। तो सर जैसे मैं बता रहा था, फॉरेंसिक ऑडिट बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है, बट एट द सेम टाइम बहुत क्रिटिकल फील्ड है। अगर फॉरेंसिक ऑडिट में आपने कुछ लिख दिया, रिपोर्ट में कुछ लिख दिया, यू हैव टू स्टैंड बाय इट, यू कैन नॉट मूव बैक। दूसरी चीज, प्लीज एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट बी केयरफुल ऑन कोटिंग फॉर फॉरेंसिक ऑडिट्स। ये बहुत ह्यूज लायबिलिटी है हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। हमारे लिए जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, उतना ही हमारे लिए गले की हड्डी भी बन सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। सो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, which I said, earth provides enough to satisfy every man's needs but not every man's greed. तो जब तक ह्यूमन बीइंग रहेगा तब तक फॉरेंसिक फ्रॉड रहेगा, जब तक फ्रॉड रहेगा तब तक फॉरेंसिक ऑडिटर रहेगा। आज के दिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो एक पान वाला से लेके इवन इन्फोसिस, नो पर्सन, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन से दैट देयर इज नो फ्रॉड इन देयर कंपनी और इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रॉड इज देयर, it depends who is doing the fraud. A person who is at a peon's level or at a clerk's level, he would be doing for some $1,000. Managers, middle management can be do for lakhs, and senior management can, there is no limit. So fraud is there. ये ACFE is a Association of Certified Fraud Examiners. It is worldwide the, you can say, alma mater for fraud experts or forensic experts. तो उसके एक सर्वे के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस आर लूजिंग एज मच एज 5% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर और एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड। तो जहां पे सैचुरेशन आ जाती है और हम अगर इसी फ्रॉड को कर्टेल कर दें, देन वी आर डूइंग अ वेरी गुड वैल्यू एड टू आवर सर्विसेज। द टोटल लॉस कॉज्ड बाय द केसेस इन ACFE स्टडी एक्सीडेड $6.3 billion with an average loss of $2.7 million. So $2.7 million is huge, really huge. जो मैं बता रहा था, हाई परसेंटेज ऑफ फ्रॉड्स आर कमिटेड बाय सीनियर मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव्स।
अब इसमें there are various kind of frauds. Asset misappropriation is the most common fraud kind of fraud, but इसका जो लॉस है वो $1,00,000 के आसपास पड़ता है पर केस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स, जहां पे हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन प्ले अ वेरी बिग रोल. द मीडियन लॉस इज $954,000, so which is in crores. अगर हमने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड को रोक लिया तो वी आर benefiting the company or the organization by crores. ठीक है. 43% of the frauds are detected by the TIP, which is the whistleblowers, and half of them from employees. Prevalence of fraud increasing in emerging markets, and India is emerging market, so fraud is increasing by the day here. और अभी कोरोना टाइम्स में फ्रॉड बहुत बड़ा है. आज हम लोग बैलेंस शीट साइन कर रहे हैं. बी वेरी केयरफुल because companies has to maintain their books, and just to maintain their books they are bound to manipulate it, or they can manipulate it. So as a chartered accountant, before signing any balance sheet this year specifically, be very careful. Now, agenda of the session, what I would be covering is what is fraud, importance of forensic audit, factors contributing to fraud, various fraud indicators, difference between forensic audit and normal statutory audit or a normal audit, scope of various forensic audits. अब इसके अंदर मैं what I would be covering is basically कि आज forensic audits हमें कहाँ से मिलते हैं और क्या-क्या scope होता है उसका. Then opportunities for forensic audit experts and accountants, and effect of forensic theorems on normal audits. So there are few theorems which we can use in normal audit as well, and which would mitigate our risk to a large extent. तो ये भी हम कर सकते हैं. Fraud, let's start from the basic definition of fraud. Fraud will always take place wherever there is an opportunity, and wherever the feeding frenzy of fraud will not abate unless fraud prevention is embraced and instituted at all levels of a company, especially in the executive suite. So what we want to say is that अगर एग्जीक्यूटिव जो सीनियर मैनेजमेंट है उन लोगों ने अगर कोई फ्रॉड प्रिवेंशन का रूल नहीं किया, so fraud cannot be stopped. So fraud would be there, and wherever there is opportunity there is a fraud. So we as auditors in a normal statutory audit also have to keep our eyes and ears open for that. We are not bound to find a fraud, but we have to be careful for that. Now this is the fraud definition as per the Companies Act. In relation to affairs of a company or any body corporate, includes any act, omission, concealment of any fact or abuse of position committed by any person or any other person with the connivance in any manner with intent to deceive. See, इस पूरे definition का सबसे basic thing is that it is not कि वहां पे wrongful gain जो fraud जिसने fraud किया है उसको कोई gain हुआ है या loss हुआ है. अगर intent भी है to gain undue advantage, that is also clubbed in the fraud. तो उसने gain उसको benefit हुआ है, loss हुआ है या उसे कुछ नहीं हुआ, अगर उसका intent है then that is in fraud and we have to report that. ठीक है. अब आता है as per section 447 of the Companies Act, imprisonment between 6 months to 10 years and fine up to 3 times of the amount involved in the fraud. This is the penalty for fraud on the KMPs of the company. जिस कंपनी में फ्रॉड हुआ और वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है और वो बताया नहीं गया तो और वो KMP ने नहीं बताया तो ये उसके ऊपर पेनल्टी है. अब आ जाते हैं एज अ ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर और मे बी इंटरनल ऑडिटर. एज पर सेक्शन 143(12) of the Companies Act 2013, if an auditor of a company in the course of the performance of his duties as an auditor has reason to believe that an offense involving fraud is being or has been committed against the company by officers and employees of the company, he shall immediately report the matter to the central government. Here the central government is NCLT and CLB. Within such time and in such manner as may be prescribed, not later than 60 days. तो हमें 60 days के अंदर 884 फाइल करना है with the NCLT or the central government. We have to file it.
फाइन ऑन फेलियर ऑफ ऑडिटर वुड रिजल्ट इन 1 लाख to 25 lakhs. तो उन्होंने क्वांटिफाई कर दिया है कि आपकी फीस मैटर नहीं करती, 1 लाख से 25 लाख तक का आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर आप ये फ्रॉड आपको पता चलता है और आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताते, नहीं रिपोर्ट करते इन 60 days. अब मैं इसको इस एंगल से कहूंगा, हम जब ऑडिट करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है. सी, फॉरेंसिक ऑडिट इज वन थिंग वेयर वी आर वेरी क्लियर कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल ऑडिट में भी हमें थोड़ी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी बेस्ड ऑन द लायबिलिटीज वी आर हैविंग व्हाइल साइनिंग अ बैलेंस शीट एज वेल. हम फ्रॉड ट्रायंगल बोलते हैं. व्हेन रिव्यूइंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड, ऑडिटर्स ऑफन रेफर टू द फ्रॉड ट्रायंगल. अब ये क्या होता है कि ये 3 बेसिक रीजंस हैं कि अगर ये 3 रीजन आपको कहीं दिखें, बी वेरी केयरफुल. आप अपने ऑडिट चेकलिस्ट को, आप अपने ऑडिट प्रोग्राम को उस फैक्टर इन कर लें इन चीजों को देखते हुए. लाइक प्रेशर, अगर आपको लगता है दैट द कंपनी इज गोइंग फॉर एन आईपीओ इन नेक्स्ट 2 years टाइम और 3 years टाइम, बिकॉज एज एन ऑडिटर वी वुड नो दैट. प्लीज आप अपने ऑडिट प्रोग्राम में उन फैक्टर्स को ले लीजिए कि उन्होंने सेल्स को कहीं बढ़ा तो नहीं दिया है, fictitious sales have not been booked or the expenses have been underwritten. We have to be very clear. कहीं पे अगर CFO के incentives are linked with the profit of the company, again we have to take that into our audit program. कि CFO का अगर link है तो he has all the powers to manipulate the books, and we have to be very careful while signing the balance sheet, and we have to do the audit accordingly. Then comes opportunity. Wherever you find that the delegation of authority is not there, और कहीं पे आपको लगता है कि कोई और रीजन से इस एक पर्सन या 2 पर्सन के बहुत पावर्स हैं, आपको अपना रैंडम वाउचिंग या आपको अपनी वाउचिंग उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा करनी पड़ेगी. आपको अपने ऑडिट प्रोग्राम उस हिसाब से ट्यून अप करना पड़ेगा. रैशनलाइजेशन, you would have a disgruntled employees in every company. In every company you have a disgruntled employees. If you come across some disgruntled employees in any company, वो जो भी काम कर रहा है, be very careful. ऑडिट प्रोग्राम में उन एरियाज को ज्यादा ध्यान से देखिए, so that कहीं उसने कोई ऐसा फ्रॉड ना करा हुआ हो to take revenge from the company, और उस चीज वो आप उस प्रोग्राम से बाहर हो जाए, आप उससे मिस कर जाएं. These 3 areas are such areas कि हम normal audit में भी देखना चाहिए, which I told you, as well as when as a forensic auditor we go to any company to find out the fraud. These are the 3 particular things which we first try to envisage कि इसमें से कौन सी चीज इस कंपनी में है, because this is the 3 highest risk fraud situations which is as per the Donald Creasy, and which as per experience, yes, it is the right thing. इसमें से इन तीनों में से जो as per survey रहा, increased pressure is the highest reason factor which contributes to the fraud. Increased rationalization is the lowest factor, but pressure is the highest factor. So अगर IPO आ रहा है या CFO का लिंक है या कोई और रीजन है, this is just inclusive, it is not exclusive which I am telling you. कोई और रीजन आपको प्रेशर दिखता है, प्लीज उसको ध्यान रखिएगा. अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल फ्रॉड. सी, एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हम फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड्स ढूंढेंगे और निकालेंगे, वी वुड बी मोर कंसर्न अबाउट ऑक्यूपेशनल फ्रॉड. एंड व्हाट इज ऑक्यूपेशनल फ्रॉड? ऑक्यूपेशनल फ्रॉड आर दोज फ्रॉड्स व्हिच इज लिंक्ड टू द ऑक्यूपेशन. अगर आप CFO हो तभी आप वो फ्रॉड कर सकते हो, अगर आप फाइनेंस में हो तो तभी फ्रॉड कर सकते हो, परचेज में हो तो तब फ्रॉड कर सकते हो. इट इज लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन. सो व्हाट यू आर डूइंग? So occupational are those frauds. So as a chartered accountant, when we are finding the financial frauds or financial statement frauds, this is the fraud which would be the most common we come across. अब इसको हम करेंगे कैसे? इसमें 3 टाइप के मेजर ऑक्यूपेशनल फ्रॉड्स हैं. करप्शन, मैन से करप्शन, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, परचेजिंग स्कीम्स है, सेल्स स्कीम्स है, ब्राइबरी है, इलीगल ग्रेचुइटीज है, इकोनॉमिक एक्सटॉर्शन है, करप्शन है. सो हमें वो ध्यान रखना है. Asset misappropriation. Asset misappropriation can be breaked into 2 things: cash and inventory and all other assets. Cash में theft of cash receipts, fraudulent disbursements, ghost employees, you have falsified wages, you have overstated expenses, fictitious expenses.
So these all are in asset misappropriation. Then comes the financial statement fraud, जिसमें overstatements है, asset and revenue overstatements and asset and revenue understatements. As a particular company wants कि मुझे टैक्स इतना नहीं देना, मुझे कम देना है, तो asset and revenue understatement पे आ गए. IPO लाना है, asset and revenue overstatements के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. So we have to be clear कि हमें क्या मिल सकता है उस fraud triangle को देखते हुए. Again, this is the as per survey of the ACFE कि fictitious sales is the biggest basic type of financial statement fraud. उसके बाद improper expense recognition आ जाता है. Then incorrect asset valuation, hidden liabilities which liabilities have not been disclosed, and then unsuitable disclosures. अगर disclosure भी proper नहीं है, then it is a kind of a fraud. Now, types of fraud. सबसे ज्यादा क्या after that comes the fraud by unrelated third parties. When I say unrelated third parties, it is credit card frauds, Paytm frauds. ये सारे fraud जो हैं ये इसमें club हो जाते हैं, fraud by unrelated third parties. Then fraud by vendors. अब vendors के साथ purchase order मिलके कहीं connivance fraud करते हैं, then that is fraud by vendors. Financial statement fraud, very manipulate the books of the accounts or the financials of the company. Corruption. This is the least fraud, and this survey, whichever survey I am telling you, is not only limited to India, it is worldwide survey. India में हो सकता है ये change हो जाए थोड़ा सा. अब again a survey कि 80% of the fraudsters face some form of internal discipline from the victim organization. अब होता क्या है कि एक fraudster है, उसने internal discipline तोड़ा, अब वो तोड़ते हैं, कंपनी वाले कहते हैं यार ये इसको बताने की जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी, वी शुड नॉट रिपोर्ट इट. Then in that case the probability of that person again doing a fraud becomes very high. Maybe he would not do that thing which he has already done, but उसकी probability बहुत high हो जाती है. 42% of the occupational fraudsters were living beyond their means. जब हम लोग एज अ फोरेंसिक ऑडिटर किसी फ्रॉड को ढूंढते हैं, हम उस पर्टिकुलर केस में अगर किसी एम्प्लॉय पे हमें डाउट होता है तो हम उसकी सोशल प्रोफाइलिंग, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड तक हम चेक कर लेते हैं कि वो लिविंग स्टैंडर्ड एज पर द मींस, एज पर द रेवेन्यू उतना में है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड उससे कहीं ज्यादा है. मैं आपको एक अपने ही केस के बारे में बताता हूँ दैट वी वर क्रैकिंग वन ऑफ द basically a fraud case in a jewelry group. You know how we found out that a particular fraud has happened and who did it? It was through Facebook. हम Facebook, Instagram, Tinder, जितने भी आपके सोशल साइट्स हैं सबको चेक करते हैं with whole families, and everything is available in the net. तो हम वो सब चेक करते हैं एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर्स, और उस केस में हमें फेसबुक से पता चला कि ये फ्रॉड तो हमें पता था हो गया, लेकिन ये फ्रॉड के पैसे गए कहाँ, वो फेसबुक से निकल के आ गया. हुआ क्या था, एक पर्टिकुलर पोस्ट में द फ्रॉडस्टर्स फैमिली वाज बीइंग कांग्रेचुलेटेड, नॉट फ्रॉडस्टर बट हिज फैमिली अगेन वाज कांग्रेचुलेटेड ऑन द न्यू हाउस एंड ऑन हाउस वार्मिंग पार्टी. अब उस फ्रॉडस्टर की इतनी वो नहीं है कि हाउस खरीद ले, चलो हमने खरीद लिया होगा. देन वी वेंट इनटू डिटेल एंड फाइंड आउट कि हाउस खरीदा कहाँ. पता चला उसने एक बॉम्बे के एक बहुत पॉश एरिया में लिया, जो एक और वो जो फ्रॉडस्टर था ही वाज अ रीजनल मैनेजर. मैं कहा रीजनल मैनेजर ऑफ अ कंपनी बाइंग अ हाउस इन अ पॉश एरिया ऑफ मुंबई इज नॉट पॉसिबल. दैट्स हाउ वी क्रैक्ड दैट केस एंड दैट पर्सन वाज वी collected all the evidences. It is interesting. We have to keep our eyes and ears open, and as a chartered accountant we have to be very clear on it. 26% of the occupational fraudsters were experiencing financial difficulties. If any person is facing financial difficulties, the happening of fraud is high. The probability of fraud is high. As I told you, 46% of the victim organization declined to refer cases to law enforcement agencies because internal discipline was sufficient. Which I told you कि internal discipline को उन्होंने सोचा कि हो गया यार और हमारा कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, वहां पे ज्यादा खराब हो जाती है चीजें.
These are few of the reasons which contribute to fraud, and the biggest reason is lack of internal controls. Lack of internal controls is the biggest reason for fraud. When I say fraud, अगर आपका internal control कहीं पे भी हल्का पड़ गया और आपने उसे रिव्यू करा तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं. आपको अपना ऑडिट प्रोग्राम उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा. Lack of management review, then override of existing internal controls, poor tone at the top, and lack of competent personnel in oversight roles. So these are the reasons which contribute to fraud. And biggest reason, lack of internal controls. Various fraud indicators. अब ये fields हैं जैसे inventory है. सबसे easy way of doing a fraud in a company. इन्वेंट्री को मैनिपुलेट किया जा सकता है बहुत इजीली, और अनलेस एंड अनटिल फुल फिजिकल ना हो जाए तब तक फ्रॉड निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है. मैन पावर, घोस्ट एम्प्लॉइज, इसमें बहुत फ्रॉड किया जा सकता है. प्लांट कैपेक्स, इसमें बहुत फ्रॉड किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, एक प्लांट लग रहा है, अब उसमें जो एज पर डिजाइन आया है उसमें 5 TMT बार्स आए लगने चाहिए एक पर्टिकुलर उसमें पिलर में, 8 लगा दिए. वी कैन नॉट आंसर कि यार ये कंपनी कहेगी यार हमने और स्ट्रेंथ के लिए 8 लगा दिए. अब वो लगाया या नहीं लगाया वी डोंट नो. वहां पे फ्रॉड के पॉसिबिलिटी बहुत हाई है. चैनल स्टफिंग, एक ही पर्टिकुलर चैनल पे बहुत तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है, वो किया जा सकता है इजीली. कंस्ट्रक्शन में बहुत इजीली फ्रॉड किया जा सकता है. कंस्ट्रक्शन फील्ड इज सच अ फील्ड की कंस्ट्रक्शन में आप कुछ भी दिखा सकते हो. वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक्ट is the biggest area where you can do a fraud. Then logistics. Logistic fraud is prevalent all over the world. अभी इंडिया में logistic fraud को चेक करने का अभी सिस्टम नहीं हुआ. But yes, it has a very high probability कि logistic fraud होता है. Now अभी हमने फ्रॉड के बारे में समझा कि फ्रॉड क्या होता है. अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि वेरियस थंब रूल्स फॉर फॉरेंसिक अकाउंटेंट. अब फ्रॉड, सबसे पहले फ्रॉड कैन नॉट बी डन बाय सिंगल पर्सन. हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, हम कहीं भी फ्रॉड रिपोर्ट करते हैं, बी वेरी केयरफुल एंड वेरी स्पेसिफिक कि फ्रॉड एक बंदा नहीं कर सकता. द कनाइवेंस ऑफ 2 or more persons आर रिक्वायर्ड टू do a fraud in a company. It is as per experience. Against, it is nothing written as such. But एक बंदा fraud नहीं कर सकता. Then comes fraud can also penetrate to gunpowder effect. अब मैं एक एग्जांपल दूं where I found out a fraud while doing a statutory audit. हम किसी भी कंपनी में जब ऑडिट करते हैं, we do the expense vouching, and when we do the expense vouching, जो आपके फ्रेट के बिल्स आते हैं, हम कितना चेक करते हैं एज ऑडिटर. सबसे आगे आपका वाउचर होता है, वाउचर के पीछे समरी, समरी के पीछे आपके येलो और पिंक कलर की स्लिप्स लगी हुई होती हैं. हम वो येलो और पिंक कलर की स्लिप्स को समरी से टैली नहीं करते. हम वो टैली नहीं करते और उस समरी का बेस लेके हम वाउचिंग को कंप्लीट कर देते हैं. हमने पर्टिकुलर उस केस में एक कंपनी में क्या हुआ था, हम लोग और नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑडिट कर रहे थे, तो इट इज की रैंडम बेसिस पे हमने उस पर्टिकुलर वाउचर को उठा लिया और उसके समरी को टैली करा. समरी को उनके पीछे जो स्लिप्स लगी हुई हैं, येलो स्लिप्स होती हैं, पिंक स्लिप्स होती हैं, उससे टैली करा. जब हमने उसे टैली करा, व्हाट वी फाउंड आउट दैट उस येलो स्लिप्स में डबलिंग हुई है, कहीं पे वो स्लिप की डुप्लीकेट एक और लगा दी गई है और उससे करा गया. अब फिर आई बात, क्लाइंट ने बोला यार ये तो छोटा सा है, ठीक है हो गया छोड़ दो. इट वॉज फॉर फ्यू थाउजेंड, मतलब 1-2 हजार का, 3 हजार का था. मैंने कहा नहीं, एक बार चेक करते हैं. जब हमने चेक करा ओवर द ईयर, फुल ईयर, द फ्रॉड वॉज समवेयर अराउंड 1.5 crores. That was the amount of fraud. So when we say, why I am giving this example is कि अगर हम फ्रॉड देख रहे हैं और हम देखते हैं 1000-2000 की चीज है,
हमें उसे छोड़ना नहीं है, बिकॉज फ्रॉड कैन ऑल्सो पेनिट्रेट थ्रू गन पाउडर इफेक्ट। मैंने से गन पाउडर इट इज की छोटी छोटी चीजें एक एक इन आइसोलेशन आपको हर्ट नहीं कर सकती, बट अगर इकट्ठी हो गई जैसे इस केस में था कि 1000 कोई इफेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जहां पे उस वहां पे हमने ओवर द ईयर चेक करा तो 1 करोड़ से ऊपर फिगर चली गई, विच इज अ बिग अमाउंट फॉर एनी कंपनी। फिर आता है while checking fraud the whole circle should be complete. See, as a forensic auditor, हमें सबसे पहले तो फ्रॉड हुआ कैसे, पहले तो किसने किया, फिर उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, हुआ कैसे, अब हो गया, उसका वो पैसा कहाँ गया, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो जब तक हम ये चारों क्वेश्चन के आंसर नहीं दे देते तब तक हम अपना फॉरेंसिक ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं मान सकते। फिर एक क्वेश्चन आता है कि फॉरेंसिक ऑडिट में तो हमें डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिलते हैं, वी डोंट गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। एब्सोल्युटली एग्री, वी डोंट गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। हमें जो डॉक्यूमेंट हमें मिले उसके वजह से हमें रिपोर्ट देनी है, एंड वी हैव टू गिव इन ब्लैक एंड व्हाइट हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं मिले, कहाँ नहीं मिले, वो हम बिल्कुल लिखना पड़ेगा हमें रिपोर्ट में। हमारे लिमिटेशन बहुत क्रिटिकल हैं। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, आपको अपने लिमिटेशंस को क्लियर लिखना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि एज्यूम आप नहीं कर सकते। अब various types of major audits of forensic is, I think there's some issue with the slide. One is financial forensic and one is digital forensics. See, financial forensic is the forensic which we do. तो हमें पता है हम ये financial forensic, digital forensic is the forensic of your laptops, emails, your mobiles, your network. This all is digital forensic. हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक करते हैं, आई डू डिजिटल फॉरेंसिक अ लॉट। सो उसमें एक चीज हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ध्यान रखनी है कि जब हम कहते हैं कि हमने कुछ डिलीट कर दिया हार्ड डिस्क में से, या वी डिलीटेड इट, नथिंग इज डिलीटेड, कुछ भी चीज डिलीट नहीं होती है, एवरीथिंग इज देयर। तो डिलीट कुछ भी नहीं होता है। सो बी वेरी केयरफुल व्हाट एवर यू डू। इसको मैं और डिटेल में एक अगली स्लाइड में लेंगे। अब मैं आई वुड स्टार्ट विद द फॉरेंसिक ऑडिट। Forensic accounting is the specialty practice area of accountancy that describes engagement that result from actual and anticipated disputes or litigation. See, the basic cheese is forensic means suitable for court for use in the court of law. Forensic audit का deliverable है whatever is acceptable in the court of law. If that particular document is not acceptable in the court of law, then it is not a deliverable of forensic audit. तो हम कुछ भी निकालते हैं, हमें कोर्ट ऑफ लॉ में सस्टेन करना चाहिए उसे। वी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड बाय द कोर्ट टू बी प्रेजेंट एज एक्सपर्ट एविडेंस, एक्सपर्ट विटनेस। हमें कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। Forensic accountants also referred to as forensic auditors or investigative auditors often have to give expert evidence at the eventual trial. All the larger accounting firms as well as the many medium-sized boutique firms have specialist forensic accounting departments. See, forensic accounting is a very niche and the specialty area. So if you want to enter in this field, enter it, but be very careful how and what you are doing it. Please don't take it as a normal concurrent audit or normal revenue audit of the bank. कि हाँ यार आने दो काम हो जाएगा। फॉरेंसिक ऑडिट में काम हो जाएगा वर्ड सबसे खतरनाक है हमारे लिए। सो आई एम जस्ट पुटिंग अ वर्ड ऑफ कॉशन, बी वेरी केयरफुल। फील्ड इज गुड, यू वांट टू एंटर इट, यू एंटर इट, but enter it with a whole heart and with the whole focus. Forensic audit is the application of accounting methods to the tracking collection of forensic evidence, usually for investigation and prosecution of criminal acts, such as embezzlement or fraud. तो अब डिफरेंस क्या है forensic accounting forensic audit में? See, as such there is no difference, but the very thin line difference is इंश्योरेंस में या फॉरेंसिक में जब हमें बैंक स्टेटमेंट दी जाती है और हमें उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी होती है,
that you can call it primarily as forensic accounting. And whatever data you find out and you get your observations, you analyze that, that is forensic audit. It is a thin line, but you can say that way. Forensic accountants, also referred to as forensic auditors or investigative auditors, often have to give expert evidence at the eventual trial. So as a forensic accountants, हमें कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है. So we have to be ready for it. Now the major difference between forensic audit and any other audit. See, सबसे पहले forensic audit में जब हम जाते हैं किसी भी कंपनी में audit करने, so we are very clear कि हमें यहाँ पे चोरी हुई है और हमें चोर को पकड़ना है. To say in a very layman language that there has been some fraud and we have to catch that a hold of that fraud and the fraudster. नॉर्मल ऑडिट में हमें ऐसा कुछ नहीं होता. हमें होता है कि यार जाना है, डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, या हमें प्रोसेस इंटरनल ऑडिट करना है तो नॉर्मल ऑडिट करके आ जाना है, प्रोसेस का करना है, व्हाटएवर आवर स्कोप ऑफ वर्क इज. बट हियर वी हैव, हमें पता है चोरी हुई है और चोर को पकड़ना है. सो आवर डाउट शुड बी ऑन ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंपनी जब हम फोरेंसिक ऑडिट करने जाते हैं, राइट? It has several components, could include any or all of the following: financial accounting review, digital forensic analysis. जब हम digital forensic analysis कहते हैं, analysis of the laptop data and all that. Field investigations. कई बार हमें forensic audit में as a field investigator, as a decoy customer, as a decoy vendor भी जाना पड़ सकता है. That is also part of forensic audit. Data mining at an advanced level. हमें डेटा बहुत मिलता है फॉरेंसिक ऑडिट में, अब उसको डेटा माइन करके उसको एनालाइज करना होता है. दैट इज डेटा माइनिंग व्हिच इज वेरी कोर पार्ट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट. एप्लीकेशन ऑफ इंटरव्यूइंग स्किल्स. अब हमने कहा कि यार ये फ्रॉडस्टर है, तो उस फ्रॉडस्टर को पकड़ने के लिए कभी कभी हो सकता है कि उस फ्रॉडस्टर के साथ ही हमें उसका इंटरव्यू ले रहे हो और उसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हो. हम सब ने CID एक सीरियल आता है, ACP प्रद्युमन, हम भी वही करते हैं फोरेंसिक ऑडिट में, राइट? नाउ कम्स द टेक्निकल असिस्टेंस सच एज हैंड राइटिंग, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, QC इवैल्यूएशन. टेक्निकल असिस्टेंस हमें हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स भी लेने होते हैं टू कंफर्म वेदर दिस हैंड राइटिंग बिलोंग टू दैट पर्सन और नॉट. सिग्नेचर एक्सपर्ट टू टेल अबाउट, टू कंफर्म आवर एविडेंस, एंड क्वालिटी कंट्रोल इवैल्यूएशन इज आल्सो डन. So these are few of the areas. It is not, again I am saying it is not exhaustive, it is inclusive. जो बेसिक डिफरेंस है, कोई भी अगर हमें डॉक्यूमेंट नॉर्मल ऑडिट में मिलता है तो हम उस डॉक्यूमेंट को एज सच ऑन फेस वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं और अपना ऑडिट आगे बढ़ा लेते हैं. फॉरेंसिक ऑडिट में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एज सच एक्सेप्ट नहीं कर सकते. हमें यह भी कंफर्म करना होता है कि वो डॉक्यूमेंट जो हमें दिया गया वो भी ठीक है कि नहीं है. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उस डॉक्यूमेंट के साथ भी मैनिपुलेट हो चुका हो. आई टेल यू, जब मैं फॉरेंसिक ऑडिट करता हूं या किया मैंने पीछे, तो बैंक स्टेटमेंट्स आती हैं. अब बैंक स्टेटमेंट में सब कुछ आपको वैसा मिलेगा, लेकिन PDF में एक जीरो कम या ज्यादा करने से सब कुछ चेंज हो जाता है. उस लेवल तक भी हमें ध्यान रखना पड़ता है. और बेटर है बैंक स्टेटमेंट के केस में हम डायरेक्टली बैंक से स्टेटमेंट ले लें instead of relying on the company or any official. वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए. और हम जब फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं तो एक ही डॉक्यूमेंट पे रिलाई नहीं करते. हम एक डॉक्यूमेंट से अपना एक व्यू जरूर बना लेते हैं, लेकिन उस पर 100% रिलाई नहीं करते हैं. We have to get other documents as well. अब मैं डिजिटल फॉरेंसिक का एक सिर्फ आइडिया आप लोगों को दे रहा हूं कि डिजिटल फॉरेंसिक एक्चुअल में होता क्या है. सी, डिजिटल फॉरेंसिक कवर्स डिस्क फॉरेंसिक. अब हम कहते हैं डिस्क फॉरेंसिक क्या है? डिस्क है हार्ड डिस्क. सो हार्ड डिस्क कैन बी इन अ लैपटॉप, इन अ डेस्कटॉप, इन अ सर्वर, राइट? और आपके प्रिंटर्स में भी आज के दिन जो प्रिंटर्स आ रहे हैं उसमें भी हार्ड डिस्क होता है. सो यू कैन गेट द डेटा आउट फ्रॉम द प्रिंटर्स एज वेल. ठीक है?
अब आ जाते हैं कि फिर हम कहते हैं कि हार्ड डिस्क में से डेटा जब हम लोग सोचते हैं कि हमने डिलीट कर दिया तो डेटा डिलीट हो गया। डेटा डिलीट नहीं होता है। ओनली वे कि वो डेटा रिकवर ना हो इज द वे कि आपका वो डेटा 5 to 6 टाइम्स ओवरराइट हो चुका हो। अगर वो डेटा ओवरराइट हो गया है तो डेटा रिकवरेबल नहीं होता है बाय अ नॉर्मल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर which in India every department or we as a forensic experts use। बहुत एडवांस्ड हमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए होगा जब पे हमें वो डेटा निकालना पड़े which is not required in our profession as such and in our forensics what we are doing। अब वो डेटा ओवरराइट कैसे होगा? फिर एक क्वेश्चन आता है जी, हमने आज 1 TB के हार्ड डिस्क है, 500 GB हमने डेटा उसमें फिल करा, हमने कहा इसे ओवरराइट करना है तो हमने 500 GB को डिलीट करा, फॉर्मेट करा और फिर लिखना स्टार्ट कर दिया, जो हम एक नॉर्मल ऑफिस में फॉर्मेट करते हैं। जब हम उस पर लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं ये ओवरराइट हो रहा है, पर द फैक्ट इज वो ओवरराइट नहीं होता है। 500 जब हम डेटा लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो 501 GB से स्टार्ट होगा डेटा लिखना, और जब तक वो 1 TB फुल नहीं हो जाता तब तक डेटा उसमें रहता है, ओवरराइट नहीं होता है। पूरा 1 TB होगा, फिर पूरे 1 TB को हम डिलीट करेंगे, फिर पूरा 1 TB हम दोबारा फिल करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर फिल करेंगे। 4 to 5 times we would do it, then only the data is not recoverable। Otherwise the data is fully recoverable, so be very careful on it। Then comes mobile forensic। मोबाइल फोरेंसिक हम कहते हैं, मोबाइल इज एज वेल एज कंप्यूटर्स टुडे। सो मोबाइल में से भी आपका व्हाट्सएप चैट, द फाइल्स विच यू शेयर ओवर द व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज रिकवरेबल। सब कुछ रिकवरेबल है आपके मोबाइल से। नेटवर्क फोरेंसिक, नेटवर्क में आप कुछ भी लिखते हैं, पूरा कंपनी का जो नेटवर्क होता है आपका रिकवरेबल होता है पूरा, तो अब आप उससे रिकवर कर सकते हैं। देन कम्स ईमेल फोरेंसिक्स। ईमेल में से वी हैव हार्डवेयर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, सॉफ्टवेयर्स कि हम उसे लगाते हैं और ईमेल में से कीवर्ड्स के बेस पे सारे डेटा को हम चेक कर लेते हैं। इट डजंट मैटर कि साइज ऑफ द डेटा, क्योंकि आज के दिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इतने फास्ट है कि कोई भी साइज मैटर नहीं करता, इट वी कैन इजीली डू इट, और द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डज दैट, बहुत इजीली हो जाता है। फिर आता है ऑडियो वीडियो फोरेंसिक। मैंने से ऑडियो वीडियो फोरेंसिक, ऑडियो वीडियो फोरेंसिक में क्या होता है, हम सब ने पहले का सुना होगा ट्रोजन हॉर्सेस की, एक हॉर्स में सिपाही छुप के आए, वो हॉर्स को अंदर लिया, उसमें से निकल के सिपाही ने अटैक कर दिया। ऑडियो वीडियो फोरेंसिक में भी क्या होता है कि आप ऑडियो फाइल भेजते हो, उसके अंदर इंक्रिप्टेड आप डेटा डाल देते हो, और जो आप किसी और को देना चाहते हो, भेजना चाहते हो बाय द सिक्योर मीन्स, उन ऑडियो वीडियोस को भी हम चेक कर सकते हैं। देयर आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट टू डू दैट। साइबर सिक्योरिटी, which is a very important part of digital forensic। साइबर सिक्योरिटी में हम सबसे पहले आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स हम कर सकते हैं, करते हैं। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग से हम क्या करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर वायरस बनाएंगे, बग बनाएंगे, एंड वी वुड पुश इट थ्रू योर साइबर सिक्योरिटी फॉर द कंपनीज लैंड्स। हम एक बग को पुश करेंगे आपके लैंड में, अब वो लैंड में कितना इफेक्ट कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा, वो चेक होता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वो कितना पेनिट्रेट कर सकता है, सो दैट वी चेक इन साइबर सिक्योरिटी। तो वो सब कुछ हम चेक कर सकते हैं इन साइबर सिक्योरिटी। सो डिजिटल फोरेंसिक पर से इज अ वास्ट फील्ड, अ क्रिटिकल फील्ड which we as a chartered accountant would not do it, but we should have a knowledge about it कि कैसे इसे क्या क्या हो सकता है। अब हम लोग एक और चीज करते हैं जो एक नॉर्मल आपके आज के दिन जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स में हो रहा है,
which as all practitioners, I suppose everybody is doing it. जीएसटी में हम कहते हैं यार कि जीएसटी और रिटर्न्स गलत फाइल करी है, डिपार्टमेंट आ जाता है, एंटी इवेजन आ जाता है, तो कभी कभी क्लाइंट बोल देता है जी आप जीएसटी रिटर्न्स तो मैं करते हैं, मेरा सीए करता है, आप सीए से पूछ लो. इट इज क्वाइट पॉसिबल और इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन इट कि सीए के ऊपर बग पास हो जाता है कि यार इसने गलत रिटर्न्स फाइल कर दिए, मैंने तो ये बोला था, गलत रिटर्न फाइल कर दिए. ये एक और व्यू लिया जा सकता है. So as a chartered accountant, whoever if we are filing the GST returns and everything, हमारी engagement letters बहुत clear होने चाहिए. अगर हम डेटा चेक कर रहे हैं तो engagement letter में होना चाहिए, और अगर हम डेटा चेक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रिटर्न फाइल कर रहे हैं, so our engagement letter should speak by itself कि हम डेटा चेक नहीं करते हैं, हम तो जो डेटा आता है उसको रिटर्न में पुट करते हैं और फाइल कर देते हैं. We have to save ourselves, and today it is good for, again I am reiterating that it is good for our profession that fields are opening up, but at the same time the liability is coming bang on us. तो हमें बहुत ध्यान रखने की बात है, हमारे एंगेजमेंट लेटर्स, हमारे वर्किंग्स, सब कुछ खुद से बोलें, बिकॉज आज कोई भी डिपार्टमेंट है वो सब चेक कर रहा है. मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं. आई एम वर्किंग विद सीबीआई, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, सबके साथ काम कर रहा हूं. तो सीबीआई डिपार्टमेंट या ईडी, दे थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द इजीएस्ट रिसोर्स विच वी कैन कैच होल्ड ऑफ. इट इज नॉट गुड टू से एट दिस लेवल, बट इट इज द फैक्ट कि वो ये सोचते हैं कि यार सबसे इजी बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको पकड़ लो, वो इन्वॉल्व होगा ही होगा और वो बोल देगा. आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, आप अपनी चीजों को, आप अपने वर्किंग्स को बहुत क्लियर रखें. एसएफआईओ जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुला रहा है, वो वर्किंग फाइल्स तक देख रहा है, वो SA 240 जो वर्किंग फाइल प्रिस्क्राइब करती है उसे भी पढ़ता है. हमें अब हमारी वर्किंग फाइल्स should be as per the standards, as per the guidance notes given by the इंस्टीट्यूट. और जहां पे कंपनी छोटी है या क्लाइंट छोटा है और हम उसमें वो चीजें नहीं कर सकते हैं, सो वी शुड प्रिस्क्राइब द रीजन. लिमिटेशन शुड बी देयर रिटर्न इन आवर वर्किंग पेपर्स, इन आवर फाइल्स, कि इस लिमिटेशन से हमने ये काम नहीं करा. वर्किंग हमारी बढ़ जाएगी, बट आगे आने वाले टाइम के लिए हमारी स्किल सेव हो जाएगी. बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज I am working with the departments and everybody is taking a very severe view of the working. So be very careful. I'm just putting it. And ये economic offensive में भी हो रहा है, definitely हो रहा है. And SFIO, आपको बता दूं, जो अभी तक आपने SFIO नहीं देखा है, मैं एक अपना एक previous experience बताता हूं. I am working with SFIO. प्रीवियस वर्किंग एक ये हुआ था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला लिया गया SFIO कि जी आ जाइए, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो ऑडिट करा था वो ऑडिट करा था 11-12 में, और मैं ये बात कर रहा हूँ 2017-18 के आसपास. तो 11-12 में काम करा, उसके बाद और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ गए, लेकिन उसको बुलाया गया और कहा गया जी आप अपने वर्किंग पेपर्स लेके आइए. सी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर वेरी ऑनेस्ट विद द वर्क. हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये कंपनी कल के दिन कौन खरीद लेगा, ये कंपनी मर्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगा. तो हमें डे वन से अपने जो वर्किंग फाइल्स हैं, वर्किंग पेपर्स हैं, एंगेजमेंट लेटर्स हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें बहुत क्लीन और क्लियर रखने चाहिए. तो उस केस में क्या हुआ, उसे वर्किंग पेपर्स बुलाया गया और वो वर्किंग पेपर लेके गए. चार्टर्ड अकाउंटेंट जो थे वर्किंग पेपर्स लेके गए. द IO, द इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, वो पहले से स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़ के बैठा हुआ था. उसने कहा एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ये डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है. द फॉल्ट इज ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट. हुआ क्या, जहां पे लिमिटेशन है वो लिखो ना, उसे लिखो, उसे आप ब्लैक एंड व्हाइट में डालो. जब आप डाल दोगे नोबडी कैन स्टॉप यू. कोई इन्वेस्टिगेशन से आपको हरेस नहीं कर सकती. हम लोग डरते हैं इन्वेस्टिगेशन से, लेकिन हमें डरना भी नहीं चाहिए, बट एट द सेम टाइम आवर वर्क शुड स्पीक फ्रॉम इटसेल्फ. अब कोई डॉक्यूमेंट मांगे, आप डॉक्यूमेंट दो ना, दिखाओ ना सबको.
बिकॉज वो मांग सकते हैं और उन्हें हमारी फ्रेटर्निटी सबसे इजी टारगेट लगती है, तो उन्हें वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा जी, आज वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मंगवा लो, सबके पास सब कुछ होगा। फिर वो ही बोलेंगे या नहीं, कंपनी वाले को बुलाते, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कुछ नहीं मिलने वाला। हमें वो चीज भी करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं, मैं अब इसको थोड़ा सा इस एंगल से लेते हैं, अब लेते हैं कि कौन कौन सी एजेंसी आज के दिन फॉरेंसिक ऑडिट दे रही है। ठीक है, द एजेंसीज विच आर गिविंग फॉरेंसिक ऑडिट्स टुडे, फर्स्ट बैंक्स बड़े लेवल पे फॉरेंसिक ऑडिट्स करा रहे हैं। एनपीए होता है, एनपीए के 3 महीने के अंदर या मे बी 6 मंथ्स फॉरेंसिक ऑडिट करवा रहे हैं। ऑल द बैंक्स आर गेटिंग इट डन, एवरीबडी इज सेविंग देयर ओन स्किन। इसमें जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, बैंक्स ऑलवेज आर इंसिस्टिंग ऑन गेटिंग अ कंक्लूसिव रिपोर्ट, क्योंकि कोई भी आदमी डिसीजन पावर अपने पास नहीं रखना चाहता, वो ऑडिटर के कंधे पे रख के चलाना चाहता है बंदूक को। तो बैंक्स कंक्लूसिव रिपोर्ट मांग रहे हैं। अगर आपके पास कंक्लूसिव रिपोर्ट देने के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिला, then only give the conclusive report, otherwise you cannot give a conclusive report. And if the banks ask it, give the limitations, and you can write prima facie it looks like this, subject to the limitations. Again I am saying conclusive report banks मांगते हैं, हमें नहीं देना conclusive report अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो नहीं मिला, और if you are very sure you can substantiate that in the court, बिल्कुल दीजिएगा। बिकॉज इसका आगे चल के होता क्या है, आपने बैंक के प्रेशर में कंक्लूसिव रिपोर्ट दे दी, कंक्लूसिव रिपोर्ट में आपने फ्रॉड बोल दिया, तो जिसको आपने फ्रॉड बोला वो भी आपको स्यू कर सकता है कि यार मुझे फ्रॉड बोला, तूने कैसे फ्रॉड बोल दिया, दिखा मुझे डॉक्यूमेंट्स। जब वो कोर्ट में जाएगी बात, तो उसका लॉयर आपसे पूछेगा, डिफेंस काउंसिल, कि आपने फ्रॉड बोला, किस लिए बोल दिया, जी दिखाओ मुझे डॉक्यूमेंट दिखाओ। एट दैट टाइम यू हैव टू शो इट। और समझ लीजिए आपने फ्रॉड नहीं बोला, कंक्लूसिव किया कि फ्रॉड नहीं है, और बैंक इंटरनली भी अपना इन्वेस्टिगेशन करता है और बैंक कहता नहीं फ्रॉड है, उस केस में फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि फ्रॉड नहीं है, आप बताओ आपने किस बेस पे बोल दिया। सो बी केयरफुल वट एवर यू आर राइटिंग इट। तो बैंक्स इज वन एरिया, जो बैंक्स इज वन इंस्टीट्यूशन विच गिव यू द फॉरेंसिक ऑडिट्स। Economic offense of any state police is giving, and CBI is giving the forensic audit. Then transaction in insolvency, transaction audit is must, and transaction audits is the other name of forensic audit. So which I would tell you later कि transaction audit में हम कैसे forensic audit है, वो एक बड़ी field है। रेरा आज के दिन forensic audits करवा रहा है। All the state RERAs are getting the forensic audit done of the projects because all the projects are delayed, और रेरा हैज ऑल द पावर्स टू गेट द फॉरेंसिक ऑडिट डन। इंश्योरेंस में फॉरेंसिक ऑडिट स्टार्ट होने वाला है, हो रहा है। सो फील्ड ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट्स, कॉर्पोरेट्स अपने खुद के फॉरेंसिक ऑडिट्स करा रहे हैं, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं। सो यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वर्क इन द मार्केट, बट एट द सेम टाइम बी वेरी केयरफुल। इफ यू नो द वर्क, टेक द वर्क, डू इट एंड एग्जीक्यूट इट। अदरवाइज जो फॉरेंसिक ऑडिटर्स हैं उनके अगेंस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अगेंस्ट भी केसेस अब स्टार्ट हो गए हैं। बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर डूइंग। अब बैंक्स जब हमसे फॉरेंसिक ऑडिटर से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, बैंक्स फॉरेंसिक ऑडिटर से सबसे पहले उसका स्कोप ऑफ वर्क, एक बेसिक स्कोप ऑफ वर्क है, मैं वो आपको बता रहा हूं। कैपेसिटी टू पे, बैंक्स सबसे पहले हमसे पूछता है एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर कि प्लीज एग्जामिन वेदर द बोरोवर हु हैज डिफॉल्टेड इन हिज पेमेंट, कि उसकी कैपेसिटी भी थी कि वो पेमेंट कर सके, कि उसकी कैपेसिटी ही नहीं थी कि पेमेंट करने की, और हम उससे वैसे ही बोल रहे हैं। अगर उसकी कैपेसिटी नहीं थी तो क्यों नहीं थी, वो अलग क्वेश्चन है। लेकिन फर्स्ट कैपेसिटी रीपेमेंट की थी या नहीं थी। अगर कैपेसिटी नहीं थी तो सीएमए डेटा चेक करेंगे और जिसने लोन सैंक्शन करा उसको पकड़ेंगे कि भाई तूने सीएमए डेटा में जब लिखा तो वहां पे यही तो चेक होता है कि कैपेसिटी है, होती है या कंपनी की नहीं होती है, राइट। सो फर्स्ट थिंग विच
a banker expects from a forensic auditor. Then comes money trail and end use. अब बैंकर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम मनी ट्रेल बना के दें, पैसा आया, अब वो पैसा कहाँ कहाँ गया, फिर एक क्वेश्चन आता है कि हम उसे कैसे करेंगे, तो हम उसे करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड। आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करके आप मनी ट्रेल बनाओगे। मनी ट्रेल आज के दिन ऑल द इकोनॉमिक ऑफिस में मनी ट्रेल बनवा रही है, जो भी फॉरेंसिक ऑडिट, सी सबका स्कोप अलग होता है, कोई भी फॉरेंसिक ऑडिट देता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उस सबका स्कोप अलग है, तो स्कोप वाइज फॉरेंसिक ऑडिटर कैन डिफर। तो इसमें मनी ट्रेल में आपको वो कहता है जी मनी ट्रेल बना के दो, तो इस मनी ट्रेल को आपको देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट इट कम्स साइफनिंग ऑफ फंड्स, कि पैसा साइफन कहाँ हुआ, आप ये बताओ कि पैसा साइफन हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम साइफन किसको कहते हैं उसको हम एक अलग मैं नेक्स्ट स्लाइड में लूंगा कि साइफनिंग किसे कहते हैं। एज पर देयर इज अ सर्कुलर बाय द आरबीआई कि इसे साइफनिंग कहते हैं, तो उसे अभी हम अलग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। टिल दैट टाइम siphoning of funds on the part of the borrower would be construed to occur if any funds borrowed from bank are utilized for purposes unrelated to the operations in the account of the borrower and to the detriment of the financial health of the entity and or the lender। तो ये तो एक नॉर्मल साइफनिंग का डेफिनेशन है, लेकिन एज पर आरबीआई सर्कुलर क्या है इसको हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे स्लाइड में। Capital structure, tracing the source of contribution by promoters by analyzing equity debt infused by promoters partners। अब इसमें क्या होता है, I would take a small example of project financing। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में 70 to 80% तो फंड होता है बाय द बैंक एंड 20 to 30% बैंक एक्सपेक्ट्स की प्रमोटर फंड करें। तो वो चेक करता है कि 20-30% प्रमोटर ने कैसे फंड करा, पहले तो फंड करा या नहीं करा और कैसे करा। उसमें जो बैंक समझना चाहता है वो ये समझना चाहता है कि हम क्या करते हैं, एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें से बैंक कहता है कि आपको 30% करना है, 30 करोड़ आपको करने हैं। हम क्या खेल खेलते हैं विद द कन्वेंस ऑफ द बैंक पीपल और द कंपनीज प्ले द रोल कि वो कहते हैं जी 100 को 120 करोड़ दिखा दो, आपने उसे बढ़ा दिया। अब 120 करोड़ का 70% बैंक फाइनेंस करने को रेडी बैठा है। 120 करोड़ का 70% कितना हुआ, 84 करोड़। अब 84 करोड़ बैंक ने फाइनेंस कर दिया, तो बचा कितना, 16 करोड़। तो प्रमोटर अपने पैसे 14 करोड़ रुपए बचा लिए बाय 100 से 120 करोड़ करने से। अब वो जो 14 करोड़ रुपए बचा लिए, तो वो भी एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर हमें बताना होता है, अनलेस एंड अनटिल ये बहुत पुराना हो कि यार बहुत पुराना है और हमें डेटा नहीं मिल रहा। डेटा बहुत केसेस में नहीं मिलता, तो हमें वो बताना होता है। अब फिर बैंक कहता है जी आपने ये तो बता दिया, अब ये जो 16 करोड़ या 30 करोड़ या वॉट एवर फिगर द प्रमोटर हैज इन्वेस्टेड, फ्रॉम वेयर डिड दैट मनी केम फ्रॉम, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दैट कंट्रीब्यूशन। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोन लेके करा और कहा जी जब फंड्स आ जाएंगे तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। बिकॉज बैंकर्स वांट टू एंश्योर कि वो पैसा कंपनी में लग चुका है, उससे निकल नहीं सकता। That's what the understanding is। तो उससे पता चलता है कि कितना स्ट्रांग है प्रमोटर। अब आते हैं कि साइफनिंग ऑफ फंड्स होता क्या है और डाइवर्जन ऑफ फंड्स। एज पर आरबीआई सर्कुलर, यूटिलाइजेशन ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस इज नॉट इन कंफर्मिटी विद द टर्म्स ऑफ सैंक्शन। सो अगर आपने शॉर्ट टर्म फंड लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगा दिए हैं without conformity of the terms of sanction, it is construed as diversion of funds or siphoning of funds। ठीक है, तो डाइवर्जन, ये डाइवर्जन ऑफ फंड में कवर हो जाता है इररिस्पेक्टिव क्या। वो फिर एक आता है जो हमने मेरे एक्सपीरियंस में रहा कि यार ये तो हमने बिजनेस में तो यूज करा, मैं घर थोड़ी लेके गया। अरे यार घर नहीं लेके गया, लेकिन अगर आपने टर्म्स ऑफ सैंक्शन से अलग पैसा का इन्वेस्ट करा है, सो दैट इज द डाइवर्जन ऑफ फंड्स, सिंपल।
deploying borrowed funds for purposes, activities or creation of assets other than those for which the loan was sanctioned. ऊपर तो हो गया कि शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज कर लिया, नीचे हो गया कि लोन सैंक्शन जिस रीजन के लिए था उस रीजन के सिवाय आपने कुछ भी करा उसका पैसे का, दैट इज डाइवर्जन ऑफ फंड्स. तीसरा, ट्रांसफरिंग बोरोड फंड टू द सब्सिडरीज, ग्रुप कंपनीज और अदर कॉर्पोरेट बाय व्हाटएवर मोडालिटीज, इसीलिए वो मनी ट्रेल बनवाते हैं. तो यहाँ पे अगर आपने ट्रांसफर कर दिया सब्सिडरीज को, ग्रुप कंपनीज को, जो नॉर्मली सैंक्शन में नहीं अलाउ होता, सो दैट इज ऑल्सो डाइवर्जन ऑफ फंड्स. Routing of funds through any bank other than the lender bank or members of consortium without prior permission of the bank lenders. अब इसमें क्या होता है, मैंने केस में देखा कि यार मुझे जीएसटी पे करना था या कोई भी टैक्स पे करना था. टैक्स पे करने के लिए सबसे इजी बैंक अकाउंट है एसबीआई. लोन लिया हुआ है मैंने एचडीएफसी से, तो मैंने तो कहा यार एक एसबीआई में अकाउंट खोल लेते हैं और उससे पैसा पास वो कर देंगे, क्या कहते हैं, टैक्स में दे देंगे. और फिर हमने सोचा चलो हम टैक्स में एचडीएफसी से एसबीआई में डाले, एसबीआई से टैक्स पे कर दिया. फिर हुआ यार टैक्स पे करना है, लास्ट डेट आ रही है, एक काम करते हैं एक पेमेंट इसी में ले लेते हैं. अगर आपने कुछ भी ऐसा करा और आपने विदाउट द परमिशन ऑफ द एचडीएफसी आपने करा, that would be construed as diversion of funds, right? Investment in other companies by way of acquiring equities, debt instrument without approval of lenders. So the basic premise of this whole slide is anything and everything which you have done without the concurrence of the lenders or without the sanction letter would be termed as diversion of funds. So आप diversion of funds से आप बच ही नहीं सकते, irrespective कि आपने बिजनेस में यूज करा या आप कहीं और यूज करा. So be very careful. और एक और चीज, अगर आपने पैसा लगाया और आप जितना आपने लोन लिया उतना पैसा आपने नहीं लगाया, थोड़ा पैसा बच गया, यू हैव टू पुट इट अक्रॉस टू द कंसोर्शियम और टू द बैंकर्स कि आपका इतना पैसा बच गया है. उसके बाद आप उसे कहीं और लगा लो, बैंक कहीं और लगा लो, परमिशन ले लो कंसोर्शियम में, कोई दिक्कत नहीं है. बट यू हैव टू इन्फॉर्म द बैंकर्स एंड द कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स कि ऐसा हुआ है और ये है. सो यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विद देम बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग द मनी इन योर कंपनी. देन कम्स, हमसे और क्या चाहते हैं, एबनॉर्मल ट्रेड ट्रांजैक्शंस. अब वो कहते हैं जी व्हाट इज एबनॉर्मल ट्रेड ट्रांजैक्शंस? Transactions of substantial amount which seem not to be normal trade transactions. See, any transaction which are at the end of the year, क्योंकि normally आपका adjustment transaction या paid transactions end of the period आते हैं, तो आपको ख्याल रखना होता है कि समझ लीजिए कि आपने एक बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर दिए, तो उसको आप एज ए फॉरेस्ट आप चेक कैसे करते हो कि जिसके साथ आपने ट्रांजेक्शन करे आपने उसका जीएसटी वगैरह सब निकाल लिया, विच इज इजिली अवेलेबल, कि उसने रिटर्न फाइल करी नहीं करी और उसी के साथ इतना कर लिया, उसका हमने मेमोरेंडम निकाल लिया, आर्टिकल्स निकाल लिया, इफ इट इज अ कंपनी और एनी अदर थिंग विच इज देयर इन द सोशल मार्केट, सोशल ऑन द वेब, वी कैन गेट इट. जो हम इंटरनेट देखते हैं, इट इज जस्ट 5 or 10% ऑफ द टोटल डेटा अवेलेबल ऑन द वेब. There is a thing called dark internet. I would not suggest you guys to go in dark internet because उससे वायरस भी बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन dark internet इस एरिया जहां से आपको सब कुछ मिल जाता है. So everything is easily available. तो ऐसा नहीं सोचिए कि यार किसी को पता नहीं चलेगा. अगर कोई पता करना चाहेगा और फॉरेंसिक किसी अच्छे फॉरेंसिक ऑडिटर को लगा दिया तो वो निकाल के ले आएगा. Then comes sales, verifying revenue from operations. अगर आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं, सेल्स रिटर्न्स हो रहे हैं, वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं. देयर वाज अ एफएमसीजी कंपनी एंड दिस पर्टिकुलर फ्रॉड वाज फाउंड आउट बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ओनली. आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ दैट, आई वाज जस्ट पार्ट ऑफ द फाइनल एविडेंस कलेक्शन टीम. व्हाट हैपेंड कि एफएमसीजी में उनके सेल्स होते हैं और एफएमसीजी है जब, तो सेल्स बहुत हाई रहते हैं, तो हाई सेल्स हो रहे हैं, सेल्स रिटर्न्स भी रेगुलर आते हैं. तो किसी ने रीजन वाइज सेल्स और सेल्स रिटर्न्स का एक चार्ट नहीं बनवाया था ऑडिटर ने.
तो एक बार ऑडिटर ने बाय चांस बनवा लिया तो उसने देखा कि एक रीजन से सेल्स हो रही है और सेल्स रिटर्न्स भी बहुत हो रही है, परसेंटेज एक एबनॉर्मली हाई है इन कंपेरिजन टू अदर एरियाज। तो जब सेल्स रिटर्न्स हाई है तो क्यों है, फिर उसका पीरियड देखा गया। तो जब पीरियड देखा तो देखने में पता चला कि ये सेल्स रिटर्न्स जस्ट वहां पे क्वार्टरली रिपोर्टिंग थी, इट वाज एन एमएनसी, तो क्वार्टरली रिपोर्टिंग थी। तो देखा कि जैसे क्वार्टरली रिपोर्टिंग है कि आपका 31 दिसंबर को कंप्लीट हुआ तो जनवरी में सेल्स रिटर्न्स आ रही हैं, उसी तरीके से अप्रैल में सेल्स रिटर्न्स आ रही हैं। तो जब उसको पूरे प्रोसेस को एनालाइज करा गया तो पता चला दैट देयर वाज अ फ्रॉड गोइंग ऑन बाय द सेल्स गाइस कमीशन लेने के लिए। There was a fraud going on in the connivance with the particular your distributors and the dealers. तो सेल्स चेक करनी है आपको, थोड़ा सा रेशियो एनालिसिस यूज करके सेल्स भी ध्यान रखना है, यू हैव टू डू इट। बैंकर्स भी हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सेल्स चेक करेंगे। एक ज्वेलरी ग्रुप का एक केस लेते हैं, अगेन ज्वेलरी ग्रुप का जो मैं आपको बताया कि फेसबुक से क्रैक हुआ था। अब उस पर्टिकुलर केस में कर क्या रहे थे, फ्रॉड हुआ क्या था। उस केस में फ्रॉड ये हुआ था कि एक ज्वेलरी ग्रुप है। अब ज्वेलरी ग्रुप क्या करते हैं कि आपके फ्रेंचाइजी खोल लिए, आपके फ्रेंचाइजीज खोलिए इन एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग कि यार इस सिटी में उनका माल बिकेगा, उनका प्रोडक्ट बिकेगा। अब उसमें क्या करा था कि आप सबने सुना होगा कि जब ज्वेलरी के रिटेल्स ज्वेलरी के सेल्स को बढ़ाने के लिए वो उन्होंने एक स्कीम्स निकाली और एवरी बिग ब्रांड हैज गॉट आउट दी स्कीम्स कि जी 11 इंस्टॉलमेंट वुड बी पेड बाय द कस्टमर every month, it is a monthly installment, and the 12th installment would be paid by the company and the customer would get the jewelry of his or her own choice. अब उसमें क्या होता था, how the company was giving the 12th installment was that the company was basically avoiding the sales commission, कि सेल्स कमीशन नहीं देना पड़ता था क्योंकि उसमें उनके सेल्स पीपल को कमीशन नहीं दिया जाता था। And at the same time the company was getting the money very much in advance which they can use it for their own purpose, on which they were not required to give the interest or anything, तो उन्हें पहले मिल गया वो पैसा। अब इसमें क्या हुआ, पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि आपका चल रहा है, आपके वेरियस फ्रेंचाइजीज पे ये काम चल रहा है, सेल्स के बंदों ने वहां के फ्रेंचाइजी ओनर से टाई अप करके ये कर लिया कि एक आपके समझ लीजिए दिन में 10 आपकी वो आ गए, क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट आ गए, 10 लोग आ गए, 10 ने इंस्टॉलमेंट दे दी, किसी की एक होगी, किसी की फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, व्हाटएवर, लेकिन इंस्टॉलमेंट दे दी। अब वो इंस्टॉलमेंट दे दी, 10 इंस्टॉलमेंट दे दी, तो कायदे से तो वो है कि वो डिपॉजिट होंगे और खत्म, और जब जिसकी 11 इंस्टॉलमेंट हो गई तो उसको दे दिया गया ज्वेलरी। इन्होंने क्या करा कि वो ज्वेलरी जो है वो 10 को एक अमाउंट बना के इनवॉइस काट दिया जी, एक ज्वेलरी बिक गई, उस पे सेल्स वाले को सेल्स कमीशन मिल गया और ज्वेलरी स्टॉक से आउट हो गई, लेकिन ज्वेलरी भी वहीं पड़ी रही, वो ले गए हो। अब उसमें क्या हुआ ये पता कैसे चला कंपनी को, जब लोगों की 11 इंस्टॉलमेंट हो गई, देन एवरीबॉडी वेंट की यार ये मुझे ज्वेलरी दो, मेरी ज्वेलरी दो, विच दे सेड यार अभी कॉर्पोरेट से आया नहीं है, अभी दे देंगे, कल दे देंगे और व्हाट नॉट, वो चला था। तो द पीपल वेंट टू द कॉर्पोरेट इन मुंबई और उनसे कहा जी हमारी ज्वेलरी दो, तो कंपनी ने कहा यार ऐसा तो कुछ है नहीं, हम तो सबको ऑनर कर रहे हैं प्रॉपरली। अब ऑनर कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, तो उनसे कहा जी अच्छा एक काम करो अपनी रिसीट दो, तो उन्होंने सबने अपनी रिसीट दिखाई। देन द कंपनी केम टू नो यार कि एक पर्टिकुलर स्टेट में ये केस चल रहा है। अब वो स्टेट में केस चल रहा है तो उस पे फिर कंपनी का यार इसको कैसे चेक किया जाए, तो उन्होंने वी गॉट दैट वर्क एंड व्हाट वी डिड, वी वेंट एज अ डिकॉय कस्टमर एंड चेक्ड एवरीथिंग। हमें पता चला कि वहां पे स्टार्ट तो हुआ था इस चीज के लिए, तो ये तो एक फ्रॉड था ही था। दूसरा फ्रॉड ये था कि वो फ्रेंचाइजी एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर ब्रांड वो कोई और भी ज्वेलरी बेच रहा था। मतलब आप एक गए, समझ लीजिए आप कल्याण ज्वेलर्स में गए या पीसी ज्वेलर्स में गए या पीपी ज्वेलर्स में गए, किसी एक पर्टिकुलर बड़े ज्वेलर पे गए,
ब्रांड के उस पे, आपने तो वहां से ज्वेलरी खरीदी, आपको आपने सोचा ये इसी ब्रांड की ज्वेलरी है, जबकि पता चलता है कि वो ब्रांड की ज्वेलरी ही नहीं है, वो कोई और ज्वेलरी आ गई है। सो वी केम टू नो कि यार ये तो कोई और कुछ और भी बिक रहा है। अब पीओएस है, एक्सक्लूसिव शोरूम से, तो पूरा चेक करने में पता चला कि एक और पीओएस रखा हुआ है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अगर और एज अ कस्टमर हमें क्या पता कि वो किस पीओएस से कर रहा है, हमें तो पीओएस से बिल मिल रहा है, हम जा रहे हैं। तो जब हमने सब चेक करा तो पता चला कि एक और कंपनी चल रही है और उसके प्रोडक्ट्स को वो एक्सक्लूसिव शोरूम वाला बेच रहा है। ठीक है जी, बेच रहा है। अब यहाँ पे जब हमने फ्रॉड चेक करा, सी व्हाट वी वर टोल्ड अगेन, इससे हम एक बार ये समझते हैं कि फोरेंसिक ऑडिट हम स्टार्ट कैसे करते हैं। हमें बोला गया यार कि मुकुल ऐसे ऐसे मेरे पास लोग आए हैं, उनके मैंने 11 इंस्टॉलमेंट्स देखे, 11 इंस्टॉलमेंट पे हैं, लेकिन उनको ज्वेलरी नहीं मिली और हमारे बुक्स के हिसाब से ज्वेलरी आउट हो चुकी है। अभी क्या करें, क्या हुआ? नहीं, उस केस में ज्वेलरी सॉरी आउट ही नहीं हुई थी, बिकॉज उन्होंने कहा कि हमें तो 11 इंस्टॉलमेंट्स ही नहीं मिली। ठीक है जी, फ्रॉम हियर वी स्टार्टेड द थिंग्स, then we sat with them as a forensic auditor, we sat with the management whoever was complaining, and हमें कहा गया कि फिर हमने समझा उन्हें कहाँ कहाँ कैसे कैसे डाउट हो, बिकॉज सी नॉर्मल ऑडिट तो हम नॉर्मल जाके साथ डॉक्यूमेंट चेक करने लग जाते हैं, बट फोरेंसिक ऑडिट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द मैनेजमेंट इज थिंकिंग, राइट? तो फिर हमने समझा कि मैनेजमेंट ऐसा बोल क्यों रही है, किस बेस पे बोल रही है। तो उसमें फिर हमने समझा कि यार ये बोल रहे हैं, और हमारा स्कोप ऑफ वर्क हमने वहां क्रिस्टलाइज करा कि हमारा स्कोप ऑफ वर्क था टू गेट द एविडेंस एंड टू प्रोवाइड द एविडेंस टू द economic offense where the management has already filed the case of the state government. In this case it was Mumbai Police, EOW of Mumbai Police. ठीक है, then we started, see again उसके बेस पे फिर हमने स्टार्ट करा कि यार डिकॉय कस्टमर बन के गए, समझा, हमने उससे रिलेटेड सारे एग्रीमेंट्स ले लिए, उस पर्टिकुलर स्टेट की फ्रेंचाइजी के सारे एग्रीमेंट्स ले लिए, बिकॉज एवरी बिग कंपनी हैज अ स्टैंडर्ड एग्रीमेंट। वहां से देखा तो पता चला कि वो एग्रीमेंट्स वर more towards the franchisee instead of the company, and every big company has a franchisee agreement which is more biased or more tilted toward the company's interest than to the franchisee interest. इस केस में हमें एक ये गैप मिला, देन उसमें हमें और भी गैप्स मिलते चले गए। अब फिर क्या हो, जब हमें एक स्टेट हो गया तो इसका मतलब है कि उसका जो रीजनल, और उस कंपनी में बेसिकली उस स्टेट का रीजनल सेल्स मैनेजर था, तो ही इज इन्वॉल्व। हमने जब क्वांटिफाई करना स्टार्ट करा फ्रॉड, तो स्टार्ट हुआ था फ्रॉड समवेयर अराउंड 10-12 करोड़ से, लेकिन जब हमने क्वांटिफाई करना स्टार्ट करा इन सब चीजों को, तो फ्रॉड पहुंचा टेंजिबल अमाउंट, इनटेंजिबल द ब्रांड की वैल्यूएशन जो हिट हुई वो अलग है, लेकिन टेंजिबल अमाउंट वाज समवेयर अराउंड 400 करोड़। अब वो 400 करोड़ है तो वो रीजनल सेल्स मैनेजर तो नहीं कर सकता, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। जब स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मिडिल मैनेजमेंट, रीजनल सेल्स मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट कर सकता है फ्यू लैक्स और मे भी कुछ करोड़, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट, एंड दिस अगेन इज टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। अब उस कंपनी में 400 करोड़ एक रीजनल सेल्स मैनेजर नहीं कर सकता था, उसके पास इतनी पावर्स ही नहीं थी। और वहां पे एक और चीज हमें पता चली कि जो हमें एग्रीमेंट्स मिले, एग्रीमेंट्स रीजनल सेल्स मैनेजर के परव्यू में नहीं आते। देन व्हाट वी डिड, we started tracking the regional sales managers कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करता है, वो पहले किस कंपनी में था। अच्छा, जो KMP से उस कंपनीज के, उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी वो उस कंपनी के, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ से आए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं सीनियर बंदा इन्वॉल्व है। तो जब हमने उसे चेक करा तो एक पता चल के आया कि यार वहां का जो एक उस फ्रेंचाइजी कंपनी का जो MD था, वो उसी ज्वेलरी ग्रुप की कंपनी का जो MD था, एक कंपनी का, उसकी एक कंपनी का MD था, उसी कंपनी का MD और वो जो रीजनल सेल्स मैनेजर वो एक गांव के हैं और वो एक कंपनी से आए हैं। दैट इज वन पार्ट। अब फिर हमें आए यार, अब MD के लेवल के बंदे को पकड़ पाना और उससे पूछना, ये भी हो सकता है वो ऑनेस्ट उसे पता ही ना हो। सी वी कैन नॉट से, बट वी हैव टू डाउट हिम। देन व्हाट वी डिड, व्हिच इज easiest वे, मैनेजमेंट ने IT के बंदे को कहा कि उस MD के जो वो लैपटॉप यूज करता है, ईमेल आईडी यूज करता है, ऑफिशियल ईमेल आईडी,
उसका पासवर्ड चेंज कर दो या कुछ खराबी, कुछ बग डाल दो, वो यूज ना कर पाए। आईटी ने डाल दिया। फिर उससे कहा गया कि फिर एमडी का फोन आया आईटी के पास, यार मेरा ईमेल नहीं चल रहा और हम सब करते हैं, ईमेल नहीं चल रहा है, मैं काम कैसे करूंगा। आईटी वाले का सर आप एक काम करो, आप आज शाम को घर जाते हुए वो लैपटॉप मुझे दे जाना एंड मैं ठीक करके कल सुबह आपको मिल जाएगा, ताकि आपका डाउन टाइम कुछ नहीं है, आप सिर्फ आज काम नहीं कर पाओगे। एमडी वाला बंदा क्या कहेगा, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप देके चला गया। We got that laptop cloned, imaged, and we need only any laptop to get it cloned. It's 3 to 4 hours job. So हमने उस लैपटॉप को क्लोन और इमेज कर लिया और अगले दिन वो लैपटॉप एमडी को वापस चला गया और उसका ईमेल आईडी वगैरह सब ठीक हो गया। उस लैपटॉप से हमने उसके ईमेल्स निकाल लिए, उसके हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब निकाल लिए और उसमें से हमें उसकी ओरिजिनल सेल्स मैनेजर की उसके प्राइवेट ईमेल आईडी से जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो मिल गया एंड वी वर एबल टू एस्टैब्लिश अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन इट कि ये इन्वॉल्व है। अब फिर क्वेश्चन आया, चलो ये इन्वॉल्व है ये भी समझ आ गया, अगर ये इन्वॉल्व है तो वो पैसा कहाँ गया, राइट? फिर हमने दोनों के फैमिली को की सोशल प्रोफाइलिंग स्टार्ट कर दी। सोशल प्रोफाइलिंग में विच आई टोल्ड यू कि निकल के आया कि यार ये पर्टिकुलर वाइफ का हाउस वार्मिंग पार्टी हो रही है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दिया जा रहा है और उसमें फेसबुक में एक नीचे एक बंदे ने जो शायद जानते थे दोनों को, उन्होंने लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस दिस एंड मिसेस दिस। एक मिसेस तो थी रीजनल सेल्स मैनेजर की वाइफ, एक मिसेस थी एमडी की वाइफ। That was the only link which we wanted and we proved in the court of law. The moment wives were involved, both of them opened their own mouth and फिर इंटरव्यूइंग स्किल्स यूज करके हमने उनसे सारा समझा, पूछा, सारे एविडेंसेस कलेक्ट करे, उनसे भी लिए और जो हम बाहर से भी ले रहे थे ऑलरेडी वो काम हमने छोड़ना नहीं था, वो भी लिए और हमने उस केस को क्लोज करा एंड द एविडेंस वाज सबमिटेड टू द EOW, राइट? अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि बैंकर और हमसे क्या चाहता है। बैंकर हमसे चाहता है कि एस्क्रो ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट का एनालाइज करो। सी एवरी सैंक्शन लेटर हैज अ गाइडेंस नोट टू गाइडेंस की टीआरए अकाउंट कैसे ऑपरेट होना चाहिए, तो वो एज पर सैंक्शन लेटर ही ऑपरेट होना चाहिए, तो वो चेक करने के लिए बोला जाता है फॉरेंसिक ऑडिटर को। फिर हमें चेक करना है कंसंट्रेटिंग ट्रांजैक्शंस कि टॉप 5 या टॉप 10 कस्टमर्स कौन से हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है उनका जो उनका परसेंटेज है विस द टोटल परसेंटेज, कहीं वो बहुत ज्यादा नहीं हो या 70% एक कुछ कस्टमर्स ही कर रहे हो जिसपे क्वेश्चन हो जाता है फिर, या सप्लायर हो, तो कंसंट्रेटिंग ट्रांजैक्शंस हमें ढूंढनी होती है। मूवमेंट इन अनसेक्योर्ड लोन्स, बैंक चाहता है कि हम बताएं कि अनसेक्योर्ड लोन में क्या हुआ, क्योंकि ये सारे तरीके हैं जिससे लोन्स पैसा निकल सकता है बाहर। देन डिटेल्स ऑफ सब्सटेंशियल डेट्स, फिर डिटेल्स हमसे पूछी जाती है कि यार कोई सब्सटेंशियल डेट्स जो भी कंपनी ने इंकर करें वो डेट्स क्या हैं, कैसे हैं, वो हमसे पूछा जाता है। हम रिसीवेबल्स हमसे पूछा जाता है कि डेटर्स जितने भी रिसीवेबल्स हमें वाउच करने हैं, चेक करने हैं, इवन डिकॉय कस्टमर्स बन के, डिकॉय वेंडर्स बन के समझना है, उनसे रिलेटेड सारे डेटा जो मार्केट में अवेलेबल है कि जीएसटी रिटर्न्स फाइल करी है नहीं करी है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं, वो सब हमें से पूछा जाता है, तो हमें बताना होता है। ऐसा भी होता है कि हमने जब चेक करा कंपनी का डिटेल्स तो पता चला कि उसका रजिस्टर्ड एड्रेस तो है किसी रेजिडेंशियल एरिया में, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया में, लेकिन वहां पे एक और क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि ये भी हो सकता है कि रेजिडेंशियल एरिया में तो एड्रेस हो लेकिन उसका जो गोडाउन वगैरह हो वो किसी कमर्शियल एरिया में, तो कहीं ये ना हो कि हम रेजिडेंशियल एरिया में एड्रेस होके हम बोल दें कि जी ये फ्रॉड है, बाद में वो हमारे पे केस कर देगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें उसके बाद भी चेक करना है, व्हिच आई वांट टू से कि एक एविडेंस पे रुकना नहीं है, हमें चेक करना है कहीं इसका गोडाउन तो कहीं और नहीं है, और वो कैसे चेक करेंगे, हमें समझ लीजिए हमने बेसिक एक चेक करा कि ये रेजिडेंशियल एरिया में है, ठीक है जी। आज जीएसटी पीरियड में ई-वे बिल्स वगैरह सब बनते हैं, तो हम उनके इनवॉइसेस और ई-वे बिल्स अगर निकाल लेंगे और देखेंगे वो माल कहाँ से आया कहाँ से चला, अगर तो वो रेजिडेंशियल एड्रेस का ही एड्रेस दिया हुआ है
definitely it is a bogus company, it is a shell company. और नहीं तो कहीं गोडाउन का एड्रेस है तो गोडाउन चेक करके आओ. सो व्हाट आई वांट टू से कि किसी भी एक एविडेंस में रुकना नहीं है, हमें सब देखना होता है एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर. फिर आता है फाइंडिंग डिटेल्स ऑफ एसेट्स. प्रमोटर्स के एसेट्स भी बैंक चाहता है कि एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर हम बताएं कि उनके पास क्या एसेट्स है क्या एसेट्स नहीं है. वो क्यों? वो इसलिए कि क्या बैंक उनसे पैसा रिकवर कर सकता है नहीं कर सकता, ये भी बैंक फॉरेंसिक ऑडिटर से समझना चाहता है. फिर एग्जामिनिंग चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस. बैंक हमसे समझ आता है कि प्रमोटर्स की चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या थी, कि जेन्युइननेस ऑफ द डीलिंग्स थी या नहीं थी, डीलिंग जेन्युइन भी थी या नहीं थी, वो सब समझना चाहता है. एग्जामिन स्टॉक्स, इन्वेंटरी एंड परचेज. देन प्रोवाइडिंग एडवाइस टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ फ्रॉड. तो बैंक एंड में हमसे ये चाहता है कि जी हमने अगर फ्रॉड हुआ तो पहले तो इसका मोडस ऑपरेंडी क्या था और हम क्या क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि ये फ्रॉड को आगे की और कंपनीज में रोका जा सके. So that also the particular bank wants to know from a forensic auditor. So this is the scope of forensic auditor vis-a-vis the bank. फिर आता है कि बैंक हमसे कहता है कि आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ फ्रॉड, कि फ्रॉड किस टाइप का था, कौन कौन इन्वॉल्व था. क्वांटिफाइंग द फाइनेंशियल लॉस. अब लॉस कितना हुआ बैंक को, वो भी बैंक फॉरेंसिक ऑडिटर से ज्यादा, लेकिन विच इज वेरी हाई, कि यार कैसे आप क्वांटिफाई करोगे, लेकिन वो करना होता है. नॉर्मली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाट वी डू इज वी गिव अ वेरी qualified opinion or qualified statement. Prima facie it looks like this, which is we cannot guarantee it because there is some limitation. Then comes gathering evidence to be used in the court proceedings. तो अगर बैंक उसके बाद भी कोई एविडेंस चाहता है, कुछ चाहता है, तो वो लेता है. नॉर्मली इस केस में जो व्हाट आई फील फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस कि बैंक हमसे कंक्लूसिव रिपोर्ट चाहता है, जो देना बड़ा मुश्किल होता है. एंड वी चार्टर्ड शुड बी बेसिकली अवॉइड दैट, क्योंकि कंक्लूसिव रिपोर्ट अगर हाँ डेटा सारा मिल गया तो डेफिनेटली वी शुड गिव. अब आ जाता है कि फॉरेंसिक ऑडिटर के लिए एक्सेप्ट एफएएफडी. सी हियर आई हैव नॉट पुट इन एफएएफडी बिकॉज़ एफएएफडी इज द बेसिक कोर्स व्हिच वी हैव टू डू टू एंटर दिस फील्ड. बट एक्सेप्ट एफएएफडी हम क्या क्या कर सकते हैं फॉरेंसिक फील्ड में. ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग तो है ही, एक्सपीरियंस हो गया. देन देयर आर फ्यू ऑफ द एक्रेडिटेशंस व्हिच वी कैन डू. CFIP सर्टिफाइड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल यूएस से कर सकते हैं. CFF सर्टिफाइड इन फाइनेंशियल फॉरेंसिक यूएस से कर सकते हैं. Certified fraud examiner, which is the most prevalent as of today and the most oldest accreditation, CFE certified fraud examiner, वो हम US से कर सकते हैं. Then certified forensic accounting professional, all these four are from US and recently Gujarat Forensic University has been incorporated, जो उसको भी अब 4-5 साल हो चुके हैं और वहां से भी हम कोर्स कर सकते हैं to enter this field. अब आते हैं कि एक हमने बैंक्स को कवर कर लिया. अब आते हैं हम नेक्स्ट फील्ड कौन सी है, इंसॉल्वेंसी, विच इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट टू एंटर दिस पर्टिकुलर डोमेन. ये 6 महीने पुराना डेटा है, सो इट कैन चेंज दैट. देयर आर 2800 कंपनीज व्हिच आर अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसेस. दे आर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस एंड एवरी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कंटेन्स अ ट्रांजैक्शन ऑडिट. Transaction audit is a nomenclature. Basically, it is forensic audit only. अब वो कैसे? See, in transaction audit हमें कहा जाता है कि हमें under section 43, 45, 50 and 66 of the IBC Indian Banking Code, हमें Insolvency Banking Code हमें बताना है कि कौन से transaction क्या है. See, section 43 क्या कहता है? We have to report the privileged transactions. And what are privileged transactions? Privileged transactions are those transactions which get the privilege or the advantage vis-a-vis the other transactions which the company has entered during that period. इस केस में 2 साल बोला जाता है, ठीक है. तो 2 years from the end of the financial year when the insolvency the admission of the insolvency proceeding has happened. जिस दिन आपका केस एडमिट हुआ है उससे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के 2 साल. मतलब अगर आज कोई केस एडमिट होता है तो हमारा सेक्शन 43 के अंदर जो पीरियड कवर होगा वो कवर होगा 1 अप्रैल 2018, 18, 19, 19, 20
and 1st April 20 से लेके आज तक का पीरियड. So this period would be covered under section 43 और हमें privilege transaction बताने होते हैं. अब इसमें क्वेश्चन आता है privilege transactions हैं क्या? There is a lot of ambiguity in this. See what a normal COC or from our experience we can say is all the related party transactions can be considered as a privilege transactions. It is all the COCs which you have attended or seen previously, they have come up with this. All the related party transactions can be considered as a privilege transactions. There are other transactions as well which can be considered privilege transactions, लेकिन related party तो लेते ही हैं. अब इसमें related party कौन है? Related party is not as per the Companies Act. वो तो है ही है कि Companies Act में लिखा हुआ है, लेकिन एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर हमें उससे आगे जाना होता है कि और रिलेटेड पार्टी कौन है, कि अगर कॉमन डायरेक्टर्स हैं वो भी रिलेटेड पार्टी, लेवल 2 लेवल 3 पे भी जाना होता है टू सी द रिलेटेड पार्टी, और वो हम इसमें डालते हैं. फिर आता है सेक्शन 45, इट इज अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन, कि कंपनी ने कोई एसेट कोई चीज ऐसी बेची ना हो, अंडर वैल्यूड बेच दी. कार्स हैं, कार्स अंडर वैल्यूड बेच दी. सो दैट वी हैव टू पुट इन सेक्शन 45 की अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शंस. फिर एक सेक्शन 49 है which recently has become very prominent, is defrauding creditors. तो सेक्शन 45 में जो हम लिखते हैं उसी से लिंक करता हुआ सेक्शन है सेक्शन 49. उसके अंदर हमें डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स का भी बताना होता है, राइट. फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 50. 50 इज एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन जहां पे कंपनी ने या जो कंपनी विच इज अंडरगोइंग अ CIRP प्रोसेस, उस कंपनी ने लोन लिया है एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. वो भी हो सकता है कि अपनी सिस्टर कंसर्न या अपने फ्रेंड से लोन ले लिया एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. सो दैट इज एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दैट आल्सो वी हैव टू गिव इन द रिपोर्ट. फिर आता है सेक्शन 66, फ्रॉड ट्रांजैक्शंस. सो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस आर द ट्रांजैक्शंस जो हमें बतानी होती हैं कि कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं है. अच्छा, सेक्शन 43 में एक और चीज है, एज पर सेक्शन 53 देयर इज अ वाटरफॉल मैकेनिज्म, कि इस हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए पिछले 2 साल में. तो अगर वो वाटरफॉल मैकेनिज्म पिछले 2 साल में नहीं हुआ तो वो ट्रांजैक्शन भी सारी सेक्शन 43 में आ जाएंगी. एंड दैट वाटरफॉल मैकेनिज्म वी कैन स्टडी और वी कैन सी इज एज पर सेक्शन 53 ऑफ द IBC. उसमें वाटरफॉल मैकेनिज्म क्लियर लिखा हुआ. वाटरफॉल मैकेनिज्म सबसे पहले वेजेस, फिर उसके बाद कुछ और, वो सब चीजें लिखी हुई हैं. सो अगर उसके हिसाब से हमने सारी पेमेंट्स हुई हैं लास्ट 2 साल में, 2.5 साल में, एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिविलेज ट्रांजैक्शन नहीं है. उस केस में रिलेटेड पार्टी प्रिविलेज ट्रांजैक्शन से बाहर आ सकती है. लेकिन अगर वो नहीं हुई तो बाकी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को भी आप प्रिविलेज ट्रांजैक्शन कंसीडर कर सकते हो. बहुत COC करती है, बहुत नहीं करती है. इट टोटली डिपेंड्स. So this is one area where as a forensic auditor we are required to give the reports. फिर आता है कि there are many lakh shell companies जो सेबी आज के दिन फोरेंसिक ऑडिट करा रहा है हर कंपनी का. सो फोरेंसिक ऑडिट हर कंपनी का हो रहा है इस टाइम, जो शेल कंपनी का सेबी कराना चाह रहा है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग एरिया. ठीक है. रेरा अब आपके स्टेट रेरास आ गए हैं जो काफी फोरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं. ठीक है, तो फोरेंसिक ऑडिट बहुत हो रहा है. अब यूपी रेरा, हरियाणा रेरा जो हम NCR में बैठे हैं वो ऑलरेडी एम्पैनल कर रहे हैं CA फर्म्स को एंड ऑलरेडी कर चुके हैं और टू गेट द फोरेंसिक ऑडिट डन. अब सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स मोस्टली डिले होते हैं, तो उसमें भी फोरेंसिक ऑडिट स्टार्ट हो गया है. एंड रेरा के प्रोविजंस भी देखने हैं और भी देखने की सैम्पलिंग तो नहीं हुआ. अब रेरा का क्या बेसिक प्रोविजन है? द बेसिक प्रोविजन ऑफ रेरा इज दैट द एनी प्रोजेक्ट which was under construction as on 2016 when the RERA Act came into existence. All the projects have to get themselves registered with the RERA authorities, respective state RERA authorities. और उनका एक प्रिस्क्राइब मैकेनिज्म है कि जो इन्वेस्टर का पैसा है उसका 70% they have to use it in their project and 30% only they can use it for repaying the loan or the interest or the promoters or anything. वो इसलिए करा गया कि कहीं नॉर्मली अब रियल एस्टेट में क्या देखा गया था कि यार एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा, बुकिंग अमाउंट उठाई
उठा के एक और लैंड खरीदा और दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, तो पहला वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता था। सो देयर आर मेनी केसेस गोइंग ऑन ड्यू टू दिस। तो उस चीज को कवर करने के लिए रेना ने बनाया कि यार पहले 70% आप सिर्फ इस प्रोजेक्ट में लगाओगे, आप 70% बाहर निकाल ही नहीं सकते, 30% निकाल लो आप, जो आपको जो रीपे करना है, कुछ करना है। तो फॉरेंसिक ऑडिटर को ये सब चेक करना है एज पर एक्ट ऑल्सो, और वो नॉर्मल सैम्पलिंग भी चेक करनी है कि यार ये सैम्पलिंग हुई है नहीं हुई है, चेक कर लो। फिर आता है इंश्योरेंस। सी दिस फील्ड इज ओपनिंग अप इन इंडिया, अभी ओपन हो रही है, हम कर रहे हैं। इंश्योरेंस में क्या होता था, अभी तक सर्वेयर आता था, इंश्योरेंस करके चला गया, और बहुत ऐसे हैं जो इंश्योरेंस हुए, वो फायर हुई भी नहीं, फायर इंश्योरेंस की पेमेंट हो गई, क्योंकि यार इतना स्टॉक था। चलो फायर हो भी गई, मैं वो भी मान लेता फायर हो गई, तो इतना स्टॉक था। अब उसको एक सर्वेयर चेक करो और एक फॉरेंसिक ऑडिटर चेक करे तो बहुत डिफरेंस आता है। तो देयर इज वेरी a big value add for a forensic auditor to do the forensic in this case, and insurance companies are getting geared up for getting the forensic audit done. So there is a field in insurance as well. So this is a forensic in a limited time. अब इसको मैं थोड़ा सा आपको, जो forensic audit के मैंने starting में बोला था कुछ theorems होते ही हैं which we can use in a normal audit as well, मैं उस पे ले आता हूं। There are two basic theorems which we use, which is part of forensic audits or forensic investigation. One is Benford's law, one is rules algorithm. And what is Benford's law? See, Benford's law, Sir Benford ने ये बोला, ये एक है जिन्होंने ये थ्योरम बनाई and which is prevalent now worldwide, कि कहते हैं अगर आप एक सेट ऑफ नंबर्स हैं, आपके पास समझ लीजिए वाउचर्स हैं या आपके पास इनवॉइसेस हैं, तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एक सर्टेन परसेंटेज टाइम्स शुड कम इन योर होल सेट। एग्जांपल, आपका जो एक नंबर है 1 नंबर शुड कम इन द फुल सेट 30% प्रोबेबिलिटी की, वो 30% टाइम्स 100, अगर 100 नंबर का सेट है तो एक नंबर 30 बार आना चाहिए उस सेट में, 2 नंबर 17.6 टाइम्स, ऐसे 9 नंबर्स हैं जो आने चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है, अगर ये नहीं आ रहे हैं तो फिर अब हम इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? नॉर्मल ऑडिट में। हम इसको नॉर्मल ऑडिट में यूज कर सकते हैं रैंडम वाउचिंग में। आज के दिन हम कैसे वाउचिंग करते हैं? हम करते हैं यार ईयर एंड पे वाउचिंग कर लो, या आप अक्टूबर में कर लो, मतलब कुछ अक्टूबर से ले लो, कुछ दिसंबर से ले लो क्योंकि दिसंबर ईयर एंड है, वहां से ले लो, कुछ मार्च से ले लो, हर क्वार्टर एंडिंग पे ले लिया। सी, जो बंदा ऑडिट करवा रहा है उसे भी तो पता है यार ये बंदा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए थे, तो ये एक तरीके से कर रहे हैं, तो वो अगर फ्रॉड करना चाहेगा करेगा तो वो उन पर्टिकुलर वाउचर्स को तो वैसे टच नहीं करेगा। तो जो हमारा पर्पस है रैंडम वाउचिंग का वो सर्व भी नहीं होता उससे। तो बेनफोर्ड्स लॉ में कैसे हम यूज कर सकते हैं कि अब इसको एक एग्जांपल लेता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन? सर नजर आ रही है? स्क्रीन विजिबल? हाँ सर, एक्सेल शीट नजर आ रही है आपकी? परफेक्ट। तो अब इस एक्सेल शीट में देखिए मैंने क्या करा है। इस एक्सेल शीट में हम परचेज के परचेज वाउचिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल परचेज वाउचिंग और परचेज पेमेंट्स, ठीक है, हम करना चाहते हैं। तो मैंने उसमें क्या करा, मैंने परचेज वेंडर्स का इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, अमाउंट, चेक नंबर, चेक डेट ले लिया, और किसने ऑथराइज करा वो ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैं फर्स्ट नंबर लेता हूं किसका? D2 का, अमाउंट का। अब इसमें मैं अमाउंट को कवर कर लेता हूं। व्हाट आई एम डूइंग इज फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट इन दिस अमाउंट D कॉलम। सी, अगर मैं वाउचर नंबर का लेना चाहूंगा, ये फर्स्ट डिजिट या सेकंड डिजिट, तो वाउचर नंबर तो फिक्स है, तो हम उसका लेने का कोई फायदा नहीं है सेट का। मैं अमाउंट का ले लेता हूं। अमाउंट
अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने जो सेट लिया है दैट इज समवेयर अराउंड, कितना लिया मैंने, एक सेकेंड, सी व्हाट आई हैव डन, 998 मैंने पूरा सेट है 998 का, ठीक है। अब 998 में से मैंने क्या करा, एक सेकेंड, मैंने 998 को ले लिया। अब मुझे इसमें से, मुझे समझ लीजिए वाउचिंग करनी है, रैंडम वाउचिंग करनी है। ये 998 ट्रांजेक्शन टोटल ट्रांजेक्शन है जो हुई है एक साल में, और मुझे इसकी वाउचिंग करनी है। मुझे सिर्फ 10 वाउचर निकालने हैं। मैं कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा पीरियड पे कि यार मार्च का वाउचर निकाल दो, ये निकाल दो, वॉट एवर, रैंडम बेसिस। बेनफोर्ड लॉ क्या कहता है ये टोटल अमाउंट्स है। सबसे पहले एक्सेल पे इन अमाउंट्स को इक्वल टू लेफ्ट D2, इनका लेफ्ट मोस्ट डिजिट निकाल लो। ये आपने सारा निकाल लिया सबका। अब इसका मैंने क्या करा, और एक कॉलम में मैंने लेफ्ट निकाल लिया, एक कॉलम में मैंने लेफ्ट 2 डिजिट्स निकाल लिए। ये निकाल लिए एज पर बेनफोर्ड्स लॉ। मेरे परसेंटेज ये होनी चाहिए जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, ये परसेंटेज होनी चाहिए। और अब मैंने एक्चुअली जो लेफ्ट डिजिट है, जो H कॉलम है, मैंने उसको कवर करा, तो वो मेरे पूरे कॉलम में 191 टाइम्स 1 नंबर आया है। और इस तरीके से मैंने सारा कर लिया। 997 टोटल था और उसका मैंने सारा कर लिया। अब मैंने उसकी परसेंटेज निकाली, कितनी आई, तो ये आई 19%, ठीक है। फिर 15%, 11%, 10%, 10%, तो ये तो सारी चेंज हो गई। अब फिर ये क्वेश्चन आता है यार बेनफोर्ड्स लॉ है, ये तो सारी चेंज हो गई, तो अब इसमें से मैं कम कैसे करूं? मुझे 100% करना पड़ेगा 997। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? आपने शीट बनाई, सी ये शीट मैंने वही उठाई है जो पीछे आपने देखा है। अब इसमें आप देखो, जो आपका सेट जा रहा है, ये देखिए, ये जो कर्व जा रहा है, ये कर्व डिक्लाइनिंग कर्व होना चाहिए एज पर बेनफोर्ड लॉ, लेकिन ये डिक्लाइनिंग कहां नहीं है। आपका 5 डिक्लाइनिंग नहीं है जो डिक्लाइनिंग होना चाहिए था, आपका 7 डिक्लाइनिंग नहीं है जो मेजर डिक्लाइनिंग नहीं है। आप 5 और 7 को उठा लो अगर आपको उसमें से उठाने हैं। फिर आप कहते हो कि 5 और 7 नंबर्स अगर मैं उठाता हूं, ठीक है, तो मैं 5 और 7 नंबर्स में मेरे टोटल सेट बनेगा 5 में 106, 7 में 113, तो मतलब 219 मुझे वाउचिंग करनी पड़ेगी 997 में से। इसमें सी दिस पर्टिकुलर लॉ इज as per experience is successful around the success ratio is somewhere around 70 to 80%, which is a very big number if you have to mitigate our risk. तो आप इस 219 को करना है। आप कहते हो नहीं यार 219 मुझे नहीं करना है। देखिए मैं इसके अंदर एक और चीज करके दिखाता हूं आपको, इसमें आपको बेनफोर्ड्स भी लेके चलता हूं, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, अब हमने जो बेनफोर्ड्स लिया, बेनफोर्ड्स हो गया रेड वाला, तो बेनफोर्ड जो मैंने लिया वो देखिए वो डिक्लाइनिंग आ रहा है और ये नॉन डिक्लाइनिंग आ रहा है, तो मैंने 5 और 7 ले लिया बस, बाकी सब चलने दो। अब 219 हो गया। अब मैं कहता हूँ यार 219 तो बहुत बड़ा नंबर है, अब 219 को कैसे करा जाए? तो बेनफोर्ड्स लॉ ने जो फर्स्ट 2 डिजिट की प्रोबेबिलिटी भी फिक्स कर रखी है, ये लिखी हुई प्रोबेबिलिटी, ये 99 तक है, ठीक है। मैंने फर्स्ट 2 डिजिट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली और उसी तरीके से मैंने ये फर्स्ट 2 डिजिट निकाल रखे, तो इसका एक्चुअल ये प्रोबेबिलिटी है, एक्चुअल ये आया हुआ है 4.14% है, तो 1.81% है ये एक्चुअल में, ये डिफरेंस है। तो इसका भी मैं जब चार्ट बनाऊंगा तो उस चार्ट में बना के मैं उसको अपने जो सेट है, अपने जो वाचिंग नंबर्स है उसको और कम कर सकता हूँ। आई कैन रीच वेयर आई वांट। मुझे 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए वाउचर्स रैंडम, वो निकाल सकता हूँ। वो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। दिस यू कैन यूज इट ऑन एक्सेल इटसेल्फ, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स वेरी इजी टू डू इट एंड वी शुड एज अ चार्टर्ड शुड डू इट। और ये जब आप कर लोगे और आप इसको आप बेस बना लोगे और इसको आप वर्किंग फाइल में ले जाओगे, सो यू हैव द फुल रीजन, साइंटिफिक रीजन कि अपने वाउचर कैसे सेलेक्ट करें। नोबडी कैन क्वेश्चन यू। So this all you can use it and you should use it in audit, और it would not take a lot of time. स्टार्टिंग का शुरू में 1-2 बार लग सकता है, वैसे नहीं लगेगा। और इसमें आप thousands and thousands भी ले लोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है।
so you can use it, right? So I would just, in this meanwhile, I would just put in this. अब एक rules algorithm और थोड़ा सा idea दे देता हूँ. Rules algorithm is basically one more theorem in which the difference between first and second number is should not be, there is a certain formula. आप rules algorithm लिखोगे तो Google में सब मिल जाएगा. The formula given and the number should not be more than 2. अगर more than 2 है तो मतलब उस पर्टिकुलर सेट उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में देयर इज अ फ्रॉड, उसको फिर आपको देखना पड़ेगा. एंड दीज ऑल बोथ द थ्योरम्स और देयर आर अदर थ्योरम्स आल्सो, ये सब आप बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप हर सेट पे आप बेनफोर्ड लॉ लग जाएगा और वो यूज हो जाएगा, या हर सेट पे रूल्स एल्गोरिथम यूज हो जाएगा और वो लग जाएगा. सो हर सेट का, हर चीज का एक रीजन है, आपको वो समझना पड़ेगा और फिर यूज करना पड़ेगा. एंड इफ यू यूज इट, definitely you will get a very good result, and you can, in normal audit as well, you can do it. And then in the end I would just put in एक basic forensic audit. जब हम start करते हैं हम क्या करते हैं, एक forensic audit का एक process बता देता हूँ. First process is, जब हमें कोई अप्रोच करते हैं forensic audit के लिए, तब हम पहले समझते हैं कि उसे fraud लगा तो क्यों लगा. What were that red flags? Red flags हम इस terminology is कि कहाँ पे डाउट हुआ, वो डाउट क्या था, रेड फ्लैग्स क्या थे, वो इंस्टेंसेस क्या थी जहां पे उसे डाउट हुआ. तो वो जब हम वो डाउट को पहले समझते हैं, उस डाउट को समझ के हम आगे बढ़ते हैं. वो डाउट हमने समझा, फिर हमने प्रोसेस समझा पूरी कंपनी का कि क्या प्रोसेस होता था, उसे डॉक्यूमेंट करा, उसके नीचे के बंदे सबसे पूछा. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट बोलते हैं कि ये प्रोसेस है और नीचे के बंदे कहते हैं यार ये प्रोसेस तो यूज ही नहीं होता, ये प्रोसेस तो हम इंप्लीमेंट ही नहीं है. दैट इज ऑल्सो हाई प्रोबेबिलिटी एंड 90% प्रोबेबिलिटी होती है. तो नीचे के बंदों से भी पूछते, सिर्फ मैनेजमेंट पे रुक नहीं जाते, नीचे के बंदों से भी पूछते कि जी प्रोसेस क्या था. देन वी कम टू नो कि क्या क्या क्रिटिकल एरियाज और कैसे कहाँ हो सकता है इस एरिया में, और फिर मैनेजमेंट की बातें भी सुनते हैं. वी लिसन टू एवरीबडी बट वी मेक आवर ओन व्यूज, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्ट डूइंग. और उसके बाद जब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, देन वी मेक द ऑडिट प्रोग्राम एंड गो अबाउट इट. एंड दैट्स हाउ वी डू द फॉरेंसिक ऑडिट. एंड our report writing is a very critical part of forensic audit, and we have to be very specific and very clear about it. और engagement letter भी बहुत clear होगा, क्या है क्या नहीं है, कैसे engagement होने, कैसे करना है. So last I would like to thank Arun ji and Raman ji for giving the opportunity, and if you have any questions, I am much more than happy to answer it. Thank you, Mukul Agrawal ji, for giving a wonderful session. That is a really eye-opening. आपका माइक चल रहा है सर अब बिल्कुल? हाँ जी हाँ जी. मैं अरुण सर को कह रहा था, उनका माइक थोड़ा वो हो रहा था. खोल लिया सर, खोल लिया. To have a wonderful session on a very new topic on the forensic audit. So normally it is called that audit is. सर एक मिनट, मुकुल सर आप अपनी auditor is a. Thank you sir. Please Raman sir, please continue. Yes, normally it is called that auditor is the watchdog, not the bloodhounds. But मुकुल जी हमें सिखा रहे हैं कि ब्लड हाउंड कैसे बना जाता है. ठीक है ना सर? So because मुझे आपकी आवाज बंद है. आवाज तेज करिए सर. आवाज बंद है सर. आंख ना खोल के रखना है, हमें कुछ ब्लड आउट नहीं बनना, लेकिन आंख ना खोल के रखना है, सेंसेस खोल के रखने हैं. That's it. हाँ वही लग जाना है, पीछे लग जाना है. फ्रॉड ढूंढना है तो डिटेक्शन करेंगे तो वी हैव. सर फॉरेंसिक ऑडिटर, अगर हमें फॉरेंसिक ऑडिट के लिए दिया गया है कि फॉरेंसिक ऑडिटर बनना है तो सर चोर को पकड़ना है, तो हमें ब्लड हाउंड बनना पड़ेगा. हाँ, चोर को पकड़ना हमें ध्यान रखना पड़ेगा. हाँ, नॉर्मल ऑडिट में हमें ध्यान रखना पड़ेगा. नॉर्मल ऑडिट में तो ध्यान रखना ही पड़ेगा,
but the main objective of this forensic audit, what I actually understand, that we have to see everybody कि जैसे चोर होता है, जब पुलिस पकड़ती है कि हाँ, सभी चोर हैं, फिर उसके बाद वो डिटेक्ट करती है और उसको चोर को पकड़ती है, तो इट इज द सेम मेथोडोलॉजी वी हैव टू सी। मतलब हमें चोर से ज्यादा शातिर बन के उसको सोचना पड़ेगा अगर उस चोर को पकड़ रहे हैं तो। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे उन्होंने बोला कि सीआईडी, जैसे सीआईडी में हम करते हैं, तो एक नया एरिया है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसको एक्सप्लोर भी ऐसे कर सकते हैं। नॉर्मली जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम होते हैं तो हमें बचपन से सिखाया जाता है, मतलब व्हेनेवर वी आर डूइंग द सीए फ्रॉम द आर्टिकल लेवल दैट वी आर द डॉग्स, पर स्टिल हमारे अंदर कहीं पे कुछ लोगों में इंस्टिंक्ट होती है कि नहीं, हमें थोड़ा उससे बियॉन्ड जाना है। तो दैट इज ए एरिया वेयर वी कैन गो बियॉन्ड दैट। मतलब जैसे होता है व्योमकेश बख्शी वाला स्टाइल, तो व्योमकेश बख्शी वाला स्टाइल अगर आपने अपनाना है तो यू कैन गो टू फोरेंसिक ऑडिट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इससे रिलेटेड हमारे जो है, दैट इज आल्सो ISA इज आल्सो द रिलेटेड सेगमेंट वी कैन गो। तो ISA में भी सेम चीजें है, बट ये एक बड़ा हमारा, हम कह सकते हैं कि बड़ा एक इसमें ऑब्जेक्टिव अलग है, और ISA का ऑब्जेक्टिव ऑडिट वाला ही होता है। So the main crux what I have learned, that there must be a need that force you, and when the need meet the opportunity and you can have your objective set कि यार ये होगा तो कुछ नहीं होगा, मेरी माता जी बीमार थी इसलिए चोरी कर रहा हूँ, या कुछ और कुछ ऐसा हम लॉजिक क्रिएट कर लेंगे अपने माइंड में कि थोड़े से फर्क क्या पड़ता है, करोड़ों की कंपनी है तो 100-200 से 500,000 से क्या फर्क, कंपनी को क्या फर्क पड़ रहा है इन चीजों से। So when the need meets opportunities and it is coupled with your logic with that कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है या कुछ भी ऐसा होता है, that make the fraud mind come into picture, and तो वहीं से फ्रॉड शुरू। तो मैंने सीखा सर से, मुकुल अग्रवाल जी से, यहीं से फ्रॉड शुरू होता है और वहीं पे हमें डिटेक्ट करना होता है। तो व्हाट ही हैज सेड कि वो जो नीड है, तो नीड फुल है कि नहीं हो रही है किसी उसकी, तो इफ नीड इज फुलफिलिंग, तो अगर कोई डेस्परेट नीड में है, व्हाट वी कैन से देयर इज ए अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू कमिट ए फ्रॉड। सो फ्रॉम रमन जी दिस इसको, टू मेथोडोलॉजी, बेनफोर्ड लॉ एंड रॉल्स। हाँ रमन जी इसमें मैं ऐड करूंगा, नेपाल में आज से हाँ जी। 6 साल पहले या 10 साल पहले ये चलता था। अगर आपने देखा हो नेपाल गए हो तो लोकल नेपालीज आर नॉट अलाउड इन द कसिनोज। अब स्टार्ट हो गए होंगे शायद, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। पहले अलाउड नहीं थे। हाँ, और हाँ। जो लोकल नेपालीज कसिनो मिल जाते थे और उनके ओनर्स को पता चल जाता कि वो कसिनो गया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट गाय हैज डन द फ्रॉड और नॉट, उसको वहां से निकाल दिया जाता था कि वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं देना चाहते कि पता चले वो कसिनो में नुकसान कर ले और फिर वो बाद में फ्रॉड कर दे। मैं ऐसा ही एक इंस्टांस बताता हूँ मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। एक बार क्या हुआ, एक लड़के को कोई कॉल आया और उस कॉल में उसे बोला कि आपका ऐसा ऐसा पैसा हमारे है, तो आपको 1 लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा हमारे पास, तो हम आपको जो आपका पैसा है वो आपको वापस कर देंगे। तो दैट इज फॉर द लीगल थिंग्स वी हैव टू पे, यू हैव टू पे टू अस सो दैट वी कैन ट्रांसफर द ऑल द अमाउंट दैट इज इन योर हैंड टू यू। तो बंदे ने क्या किया कि एक चेक लिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उस पर साइन किए और साइन वो चेक लगा दिया बैंक में 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का चेक, अब वो बैंक से फोन आया कि साइन इज नॉट, सो पता लगा कि किसने किया है, तो थोड़ा ड्रिल डाउन किया तो पता लगा उस लड़के ने किया है। तो कैसे इसको पता चला, एक्चुअली दैट गाय टॉक कि ऐसे ऐसे सर पैसे की जरूरत है और 1 लाख रुपए मुझे चाहिए और दिस फॉर दिस सर। अरोरा सर आपका सर साउंड आ रहा है, अरोरा सर साउंड आ रहा है सर आपका, म्यूट कर दिया सर मैंने। तो यहाँ से पता लगा मुझे, तो मुझे फिर उस पर शक हुआ, तो मैंने उससे बात किया, तो ही हैज कमिटेड कि यस सर मेरे से गलती हो गई और ऐसे ऐसे मेरा दिमाग खराब हो गया था पूरा, बिकॉज आई एम इन द डेस्परेट कि मुझे कुछ करना है, तो उस वजह से मैंने ये किया। तो इस तरह से हमने उसको पकड़ा। तो दैट इज द फोरेंसिक ऑडिट वी हैव डन इन आवर ऑफिस। किसी और को पकड़ा, साथ में नहीं पकड़ा, लड़की को अकेले निकाला उसे नहीं, पकड़ लिया सर, अकेले उसे पकड़ लिया, किसी और को भी पकड़ा? क्या कह रहे?
अकेले उससे पकड़ा, किसी और को भी पकड़ा? नहीं उसको ही पकड़ा सर, नहीं उसको ही पकड़ा सर, बस सबने। अकेला नहीं कर सकता सर कोई? दैट्स व्हाट आई सेड। अच्छा नहीं, उसने क्या करा, पता लगा कि इसने ड्रॉर में से चेक था, तो ड्रॉर में से निकाला, एक चेक लीफ लिया और उसने उसको करके और ऐसे कर, तो अकाउंटेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट, वो हमने देख लिया था। दैट्स द फॉरेंसिक ऑडिट, मतलब जो छोटा सा है। तो विद दिस बट वी हैव लर्न the Benford law and Rawls algorithm, how we can use in getting the sampling size and sampling methodology in our system. So आप इसके साथ साथ एक रिस्क बेस्ड ऑडिट होता है, तो you can also go and study the risk based audit also, because in that risk based audit you can have a flavor of these all the things, जो फ्रॉड हम डिटेक्शन की बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि वहीं से हमें ये चीजें पता चलती है कि किसी भी सिस्टम में कितना रिस्क है और उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कितना कंट्रोल है, और उस कंट्रोल के बाद उसमें जो रिस्क लेवल है, वेदर दिस इज जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कि वो एपेटाइट लेवल से ज्यादा है, कम है, सो इन दैट वे यू कैन आल्सो फाइंड। तो रिस्क apart from this, what the sir have just teach us, so you can also go to the Google or books to get a for how to do the forensic audit. So उसमें आप इसको भी देख सकते हैं, risk based audit। तो risk based audit में आपको system audit और forensic audit का काफी अच्छा आपको उसका काफी अच्छी methodologies मिलेंगी, जिसमें you can have a drill down और उसमें काफी कुछ सीख सकते हैं। और जैसे अभी चल रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन और ये सब चीजें, तो उसमें रिस्क बेस्ड ऑडिट में यू कैन हैव ओवर प्लानिंग, ओवर प्रोग्रामिंग, ओवर ऑडिट प्रोग्रामिंग, ओवर डॉक्यूमेंटेशन। सो उसके बेसिस पे अगर हम करें, मेरे साथ आज के टाइम का द नीड ऑफ द आवर क्या है कि हम क्या करते हैं कि हर चीज को, सपोज वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, so we cannot go for the 100% vouching or 100% checking. So otherwise, or we cannot also go for the judgmental checkings or vouchings. So in that case, we have to go to the risk-based audits and risk-based sampling methodology that Mukul ji has taught us. So with these words, I deeply, heartily thanks to Mukul Agrawal ji for sparing his valuable time and give us very good understanding of the forensic audit. And I request Rajesh Arora ji to give a formal vote of thanks to CA Mukul Agrawal ji. सर वॉइस The mic on off है। हाँ कर दिया सर। Mic। सर बिफोर वोट ऑफ थैंक्स, मुझे मुकुल अग्रवाल जी ने ना, मैंने भी फॉरेंसिक ऑडिट किया हुआ है 2 साल पहले, वो मैं भूल अरे चुका वाह था, जी। और मैं भूल चुका था, मेरे पास भी आई एम आल्सो होल्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ द फॉरेंसिक ऑडिटर, लेकिन मैं सारा कुछ भूल चुका था। और इनका लेक्चर मैंने इतने ध्यान से सुना कि मुझे सारी बातें ना याद आ गई कि कैसे कैसे उन्होंने हमें स्टडी कराया था और कैसे कैसे उन्होंने हमारे को फ्रॉड पकड़ने के तरीके बताए थे सर। तो बाय चांस आई हैव डन दिस फॉरेंसिक ऑडिट इन रोहतक। दिल्ली से रोहतक जाते थे और जाते भी सोचते थे कि कैसे पकड़े, आते भी सोचते थे कैसे पकड़े। मुकुल जी आपने क्या, दिल से धन्यवाद करूंगा पहले तो, बिफोर वोट ऑफ थैंक, कि आपने मेरा जो वो करीब 8 वीक का जो सेशन था ना सर, संडे सैटरडे वाला, वो सारा रिमाइंड करवा दिया सर। मुझे लगता है कि मुझे अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। Your lecture is very interesting and important for me also, including our attendee also sir. So मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और दिल से आपको ये मोमेंटम भी ऑनलाइन देना चाहता हूँ विद बुके सर। तो officially I give you a vote of thanks sir. I on behalf of Northex CA Study Circle with our brother CA Arun ji and our brother Raman Gupta ji and our younger brother Dev, who is organizing all these webinar, and our all attendee, thank you very much for sparing your precious time for our webinar. Hope again we will call you कि कुछ तो चीज आपने चीजें छोड़ी हैं, लेकिन मैं आपको रिमाइंड नहीं कराऊंगा सर। नेक्स्ट टाइम आपको कॉल करेंगे और पहले बताएंगे कि आपने ये चीज छोड़ी है सर। So from the core of the heart, I thank you very much sir, and accept our memento and bouquet sir. Thank you very much sir.
Thank you so much, sir. Thank you, Thank sir. you, Mukul ji. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.